Good morning, guys. Am I visible and audible to you? Good morning, guys. Am I visible and audible? Yes, please. Uh, okay. Uh, I'm all fine. Don't worry. Just not taking class from the studios. My health is fine. Uh, so today, since is this the second class of medieval, I didn't want to cancel the class, and because of some inadvertent reason, I cannot visit studios. So I'm taking class from here. आवाज आ रही है? Yes. गौरव आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? Yes, please. I'm all fine. My health is all fine. Don't worry. I'm extremely okay. Just that I cannot travel to the studios because of some reasons, and hence did want to cancel the class. ठीक है. So let us begin from where we left yesterday. कल हमने कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे छोड़ा था. Okay, so the conflict of 10th century onwards. So I'm going to share the PPT with all of you now. I hope all of you are there joined. Those who uh, those of you who were new yesterday, कल आपकी जो पहली क्लास थी, is it all okay? Are you able to see? Yes, please. क्या आप देख पा रहे हैं? Okay. I hope you can see the slides on your screens now. Okay. So don't worry if my as such if my face is coming blurred or something like that, but the slide should be proper and clear. Is everyone okay with the slides? सर कल इन्फो नहीं थी क्लास तो आज न्यू स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे लाइक में मैंने रिकॉर्ड देखे थे. ओके. कल आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन नहीं थी. वाई? देयर वर मेनी स्टूडेंट्स ओवर देयर जो नए आए थे. ओके. आज कितने लोग नए आए हैं? आज कितने लोग नए आए हैं? समर्थ होयसालाज हम करेंगे. होयसालाज आर 11th 12th century dynasties. Particularly we shall do it while we are doing विजयनगर kingdoms, because हम नॉन इस्लामिक किंगडम्स एक साथ में करेंगे. सो होयसालाज का समय अभी भी आएगा. So yes, there are many new students here who have not joined yesterday, and yesterday the class was not confirmed as many people are saying. Okay. Well, that's unfortunate because this is ideally speaking the second class of medieval. Okay, medieval time period. We had done yesterday the first class of early medieval, and just to recap to all of you, I'm sure you all must have seen the recordings. But just to recap to you, we have finished with the Rashtrakuts, Gurjar Pratiharas, and Pala, along with Cholas, which we had done already in the ancient time period. So we have finished with all of these early medieval dynasties. ये सारे early medieval dynasties हैं, which we have finished kind of. And now, just a second, guys. Just a second. Give me just 1 minute. Yeah. So we have done all of these early medieval classes, early medieval chapters, along with the tripartite struggle. ठीक है. So जो tripartite struggle आप पढ़ते हैं, we have already finished that. Today's agenda or today's topic of discussion is from 1000 AD onwards. That is, we will do what you call as northwestern frontier attacks. We will
try to cater that, और साथ ही साथ we will also try to cater the rise of Rajputs, the fall and decline of Rajput kingdoms, and the establishment of Delhi Sultanate. ठीक है, तो अगर भगवान ने चाहा, so establishment of Delhi Sultanate also will do. मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी, those who have joined just today, जिन्होंने इससे पहले मिडीवल नहीं पढ़ा और आज आपकी पहली क्लास है, प्लीज आज क्लास के बाद आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, एंड सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन द रिकॉर्डिंग एज आयुषी इज लेटिंग मी नो. ठीक है, बट just to tell you the plan of medieval, see that's the basic thing that आपके prelims आने वाले हैं and we don't want to miss even a single day. So the plan of the medieval is 29th तक हम medieval को खत्म करेंगे. अगर नहीं होता है तो 30th तक जाएगा, बट ठीक है, still we are focusing to have our lectures till 29th. Tomorrow is Saturday and tomorrow also we are having this lecture. ठीक है, Sunday and Monday is holiday as you all know. So एक Monday हमारा वो खा जा रहा है, ठीक है, समय. बट एनीवेज, अगर आप लोग साथ में रहेंगे, so I can also take classes on Christmas, but provided all of you are on board. Okay, so let us begin with our early medieval time period now, particularly with respect to the conflicts. So we have done all of this. We have done Rashtrakuts. We have, you know, ideally finished all of this. And the important thing that is lying to us is age of conflict between 1000 to 1200 AD. This age of conflict का मतलब age of northwestern attacks, okay, in India, particularly in the medieval time period. हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये एक सबसे बड़ा कंटेंशियस पीरियड है. कंटेंशियस पीरियड का मतलब कि भारत को या इंडिया को ऐसा बताया जाता है दैट इट इज प्रोन टू अटैक्स, एंड इट वाज बिकॉज ऑफ दिस अटैक्स दैट we suffered what you call as a medieval dark age kingdoms. तो हमारे यहाँ पर बाहर से जो वर्ड यूज किया जाता है, outsiders and etc. The outsiders have started coming up and outsider kingdoms had started coming up and so on and so forth. But frankly speaking, आप सब लोगों ने ancient किया हुआ है, we have suffered attacks, okay, and we have seen attacks from the northwestern part of Indian subcontinent from the time of ancient kingdoms itself. So, from the time of, let's say, Alexander, from 326 BCE itself, this route has been open. Okay, एक जमाने में पोरस ने लड़ाई लड़ी थी on behalf of, as they call it, the other North Indian kingdoms. Or for that example, we have seen attacks or we have seen invasions from Indo-Greeks after that in 2nd century BCE. और we have also seen Shakas, जो अगेन बाहर से ही आ रहे हैं, अगर बाहर का ही डेफिनेशन है, कुशान्स, ओके, पार्थियंस, etc. They have all come from the northwestern route. So ideally speaking, जो medieval India में हो रहा था at this point of time 1000 AD, वो कोई नई बात नहीं थी. इनफैक्ट इट इज नॉट इवन 1000 एडी. द अटैक स्टार्ट बाय पीपल नोन एज सुबुक्तगिन, अलाप्तगिन, ठीक है, और अलाप्तगिन सुबुक्तगिन से पहले ही आते हैं. सो सुबुक्तगिन है, मोहम्मद बिन कासिम है, ओके, उसके बाद गजनी है, महमूद ऑफ गजनी, एंड देन मोहम्मद घोरी, ठीक है. So these series of attackers which they come from 7th century onwards till 10th century, 11th century, this is not a new phenomena. ये कोई नई बात है नहीं, right? तो जब अगर नई बात है नहीं, तो इसमें और पहले वाले invasions में फर्क क्या है? This is what, you know, I want to basically initiate the discussion with all of you, और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में थोड़ा सा सोच के, यू नो, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट. सो व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता क्या है कि पहले वाले इन्वेजन्स में जो एंशियंट इंडिया में हो रहे थे, और जब अब जो इन्वेजन्स हो रहे हैं मिडीवल इंडिया में, जिसको आज हमें पढ़ना है, इसमें मूलभूत मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द मेन डिफरेंस आउट देयर?
that stands it apart, that makes it distinguished, that makes it stark, जो बहुत ही इसे stark बनाता है. What do you think that is? Yes. So they were not coming to settle here, they were just coming to plunder and go back. Okay. Or sir, they did not come to extend empire only for plunder. ठीक है. Sir, fighting style and using new weapons. They established all India empire in medieval time period. Fine. Previous invaders assimilated in Indian society, but these invaders are bringing their culture. Uh, okay, fine. And so they came, that is, ancient came and adjusted with Indian communities. So medieval period rulers, they didn't adjust, something like that. But sir, Shak, Huns, Kushans, they were all here for plunder, but settled. Okay. Religious connotation इनका अलग रहा है. ठीक है. Fine. Sir, ancient people adopted Indian culture, but they tried to change our culture. Hmm. So bringing culture introduced new things. Hmm. ठीक. Uh, See, that's the basic ideas that we have. Um, there are two processes that we need to understand. Okay, after getting your submissions, मैं चाहता हूँ जो नए लोग हैं, all of your answers are coming from students who have all जो पहले से एंशियंट कर रहे थे, सो यस दे आर देयर. जो आप मेडिवल कर रहे हैं, आई वांट देयर इनपुट्स आल्सो. ठीक है ना. जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, I don't know if you have taken class with me earlier or not, but I would like to take inputs from my students, है ना. I believe in discussion more. तो डिस्कशन होता है तो उसमें आपके भी आइडियाज खुलते हैं. ठीक है, आपको भी मौका मिलता है अपनी बात रखने का. और जब आप डिस्कस करके पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से जहन में बैठता है, वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है. सो ऑलवेज पुट अप योर हैंड्स आउट फॉर डिस्कशन वेन एवर आई आस्क फॉर योर ठीक है थॉट्स. ठीक है, कोई बात नहीं. फ्रॉम वेर एवर यू हैव डन एंशियंट एंड मॉडर्न, बट आई एम श्योर कि जब हम लोग एंशियंट की, इंडो ग्रीक, शाक्स, कुशान्स, पार्थियंस की और अलेक्जेंडर के इन्वेजन्स की बात कर रहे हैं तो ये सब आपको पता ही होगा, है ना. तो बस आपको अपने प्री नॉलेज से कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है. नाउ Parthians also. Parthians go away. Pahlavas, they go away, but Shakas broke into smaller kingdoms. Shakas broke into 5 smaller kingdoms. But अच्छा, you are saying Pratihars broke into smaller kingdoms. We'll see Pratihar का क्या होता है. Pratihars go into a number of what you call as Rajput dynasties. हम देखेंगे Rajput dynasties को अभी. लेकिन मैं लार्जर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में एज सच समझने के लिए जो जो एक सीढ़ी होती है या अगर एक ब्रिज होता है ना, कि आपको एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी तक जा रहे हैं, उसको समझने का प्रोसेस क्या है, तो वो मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. आई वांट टू टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स इट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस. दो चीजें हैं विच आई वांट यू टू सी. मिडीवल इंडिया की कहानी जो है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारी गलती भी नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस जो है ऐसा है कि हमें इंडिया के बारे में सब कुछ बताता रहता है. ठीक है, कि इंडिया में अटैक्स हो रहे थे, इंडिया में ये हो रहा था, इंडिया में वो हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंडिया में इस टाइम पीरियड पे, यानी कि ये टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था, ये जानने के लिए आपको इंडिया के थोड़े बाहर जाके देखना पड़ेगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल ईस्ट किंगडम्स. सो इंडिया से ठीक आप वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सी क्रॉस करने के बाद, अरेबियन सी क्रॉस करने के बाद आपको मिडिल ईस्टर्न किंगडम्स देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते थे कैलिफेट किंगडम्स, है ना. आज भी कैलिफेट किंगडम्स जो हैं, जिसमें सऊदी आता है, जिसमें यूएई आता है, जिसमें यू नो दूसरे अरब मुस्लिम नेशंस आते हैं. सो कैलिफेट किंगडम्स जो थे वो 7th 8th सेंचुरी में बन रहे थे और ये इस्लाम के आने के साथ बन रहे थे. ओके, सो इस्लाम वाज कमिंग अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, particularly in the caliphate kingdoms, and they were spreading in all of the directions. Spreading का मतलब, अगर यहाँ पर आप मैं मैप बनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन यहाँ पर इमेजिन करिए कि सऊदी का क्षेत्र है, मक्का है, मदीना है, ओमान का क्षेत्र है, यमन का क्षेत्र है, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस इज कैलिफेट्स. यूएई उस समय नहीं था, ठीक है ना, तो वो सब था नहीं, तो इट वाज अ बिगर कैलिफेट किंगडम.
और ये दोनों तरफ फैल रहा था, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट एंड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में इस्लाम को चैलेंज करने वाले थे क्रिश्चियनिटी, ठीक है, सो क्रिश्चियनिटी वाज देयर विच वाज चैलेंजिंग इस्लाम, और इसीलिए एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ते हैं द क्रूसेड्स पार्ट, हालांकि आप लोग पढ़ते नहीं है, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट एक क्रूसेड्स होता है जिसमें क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का हिस्ट्री है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस वर्सेस क्रिसेंट। क्रॉस का मतलब क्रिश्चियनिटी, क्रिसेंट का मतलब इस्लाम। तो क्रॉस और क्रिसेंट की कहानी जो थी वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल रही थी, जिसमें आप देखते थे कि इवन फॉर टर्की, इवन फॉर द प्रेजेंट डे इजराइल, एंड इवन फॉर ऑल द प्लेसेस विच वर लाइंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, उस सब चीज के लिए फाइटें हो रही थी, या वॉर्स हो रहे थे बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड बिटवीन इस्लाम, ठीक है। सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। हमारे सेक्शन में क्या हो रहा था, कैलिफेट विल फाइट विथ होम। आपको क्या लगता है कि कैलिफेट किसके साथ फाइट करेगा? यस प्लीज। हमारे सेक्शन में, यानी कि ईस्टर्न साइड के सेक्शन में, टूवर्ड्स इंडिया, टूवर्ड्स चाइना, टूवर्ड्स रशिया, टूवर्ड्स जापान, इस्लाम जो है, हालांकि जापान तक तो जाता नहीं है, लेकिन इस्लाम जो है वो किसके साथ फाइट करेगा? एनीबडी, एनी थॉट? विच विथ विच रिलीजन इस्लाम विल फाइट? यस प्लीज। Everyone is saying, sir, Hinduism, except for Madhu Vedant. Hmm. Actually, caliphates were fighting Buddhism. ठीक है, हिंदुइज्म के आने से, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वैदिक रिलीजन जो फॉलो हो रहा था, जो भी फॉर्म ऑफ वर्जन ऑफ वैदिक रिलीजन था, दैट वाज इन द इंडियन हार्टलैंड। बट रिमेंबर दैट दीज एरियाज जो अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, तुर्कमेनिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, इन ऑल ऑफ दीज एरियाज देयर वर बुद्धिस्ट्स, पर्टिकुलरली कारामाती बुद्धिस्ट जिसको हम कहते हैं, कारामातीज। ये सारे तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हुआ करते थे, एंड दे वर मोस्टली इन द ट्राइबल अफेयर्स, दे वर मोस्टली ट्राइबलाइज्ड। सो कैलिफेट्स जो थे, ठीक है, जिसमें किंगडम्स के नाम ऐसे हैं जैसे अबासिड किंगडम्स, ठीक है, सैमनिड किंगडम्स, ठीक है, और मंगोल्स और ख्वाजरिम्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे किंगडम्स के नाम हैं जो एक के बाद एक डायनेस्टीज के फॉर्म पे आते रहे कैलिफेट के एरिया में। आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि कैलिफेट के रीजन में एक इस्लामिक किंगडम हुआ करता था, जो फ्रंटियर्स के लोगों को एज अ मर्सिनरी यूज कर रहा है, ठीक है, मर्सिनरी सोल्जर्स के जैसे यूज कर रहा है फ्रंटियर्स के लोगों को। मतलब इंडिया इज नॉट अ फ्रंटियर फॉर देम, इंडिया इज अ मेन लैंड, लेकिन इंडिया और कैलिफेट के बीच में जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको फ्रंटियर का रीजन बोला जाएगा। और इसमें ना वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलो करने वाले होते थे और ना इस्लाम फॉलो करने वाले लोग होते थे। यहाँ पर ना इस्लाम फॉलो किया जा रहा था, ना वैदिक हिंदुइज्म फॉलो किया जा रहा था। यहाँ पर एक प्रकार से ट्राइबल कल्चर था, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम बुद्धिस्ट, एंड दैट टू वज्रयान बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग हुआ करते थे। अब कैलिफेट्स डे, बिकॉज इट वॉज नॉट एन आइडिया ऑफ एक्सूबरेंस बाय इंडियंस, मतलब इंडियंस को या इंडिया में रहने वाले डायनेस्टीज को इस समय अपने क्षेत्र बढ़ाने थे नहीं इस तरफ। तो जो इस तरफ है, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट में है, वो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे थे, एंड दे वांटेड टू इंक्रीज इट, एंड हेंस दे स्टार्टेड what you call as converting these tribals, इन ट्राइबल्स को, इन बुद्धिस्ट को, इन कारामातीस को उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया और एक मर्सिनरी सोल्जर्स, कबीले वाले फोर्स के सोल्जर्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में लोग रह रहे थे, जो आज के प्रेजेंट डे इन रीजन्स में लोग रह रहे थे, दे वर रेडी एज अ स्वॉर्ड फॉर हायर। यानी कि इनको भाड़े पर लिया जा सकता था, इनको खरीदा जा सकता था, और आप इनको पैसे के बदले आप किसी से भी लड़वा सकते थे। Not just that, they were also in a way proselytizing themselves for the new religion which was coming up. So for example, Islam अपने तरफ से इन्हें religion में आने की अनुमति दे रहा था, but they were not basically they were not fully following Islamists.
So they were allowed to come into the religion, they were allowed to prosper, and they were allowed to follow the religion. And what इनके जो incentives थे, that was based upon proselytizing as many people as possible. तो जितने सारे लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको इंसेंटिव उतने ज्यादा मिलेंगे, आपको खलीफा से उतने ज्यादा खुतबा मिलेंगे, आपको खलीफा से उतनी ज्यादा खिल्लत मिलेगी, रिकॉग्निशंस, आपको खलीफा से उतना ज्यादा हो सकता है एरिया का गवर्नरशिप मिल जाएगा। खलीफा डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, खलीफा डायरेक्ट इन सारे एरिया पे अटैक नहीं कर रहे हैं, बट वो इन मर्सनरीज के थ्रू, इन सोल्जर्स के थ्रू, इन भाड़े के लोगों के थ्रू, they are trying to make this area a zone of their influence. And that is where India fits in, that is where India comes up, because India is the only territory on the eastern side which sounds promising. तो आपका मेन गोल जो है वो इंडिया है ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में आपका गोल हो सकता है इस्तांबुल हो, वेस्टर्न साइड में आपका गोल हो सकता है इसराइल का रीजन हो, वेस्टर्न साइड में आपका गोल हो सकता है कि ग्रीक रीजन्स हो। सो वो आपके अपने गोल्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड में। लेकिन ईस्टर्न साइड में एक ही गोल है, इट वॉज नॉट इवन चाइना, बिकॉज चाइना को जाना या चाइना तक जाना वॉज अ वेरी टफ डील बिकॉज ऑफ द ग्रेट वॉल एज वेल एज द हिमालयन रेंजेस एंड द कुनलुन शाह रेंजेस। और आप जानते हैं कि तिब्बत का प्लेटो अपने आप में मेनलैंड चाइना में एंट्री करने का एक बड़ा बैरियर हुआ करता था। तो बचा इंडिया, बिकॉज इंडिया के तरफ हिमालय हमें कुछ पासेस देते हैं, राइट, एंड यू नो फॉर एग्जांपल खाइबर पास, बोलन पास, गोमल पास एक्सेट्रा। तो इन पासेस के थ्रू जो है आप इंडिया जा सकते हैं। इंडिया पे आने की ट्रेडिशन पुरानी थी, कोई थी नहीं, नई बात तो थी नहीं। ट्रेड रूट्स इंडिया से सेंट्रल एशिया जाते थे, सो दे वेरी वेल न्यू हाउ टू कम टू इंडिया एंड हाउ टू गो फ्रॉम इंडिया, एंड दे वेरी वेल न्यू दैट दीज आर द ट्रेड रूट्स। दे वर वंस अपॉन अ टाइम ट्रेडर्स, but now the process changed, now the ideology changed, and now a new religion was on the block which favored proselytization along with conversion, along with territory occupation. तो ये सारे चीज एक साथ हो रहे थे। Are you getting the process, everybody? Yes, please. समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? ठीक है। Now we shall see that what was their nature of, इफ आई वुड से, इन्वेजन्स, कि उनके नेचर ऑफ इन्वेजन्स क्या थे, क्या वो हमारे कल्चर में समाहित हुए कि नहीं हुए, क्या उन्होंने जस्ट कम फॉर प्लंडर, और एज मेनी ऑफ यू वर सेइंग दैट दे केम हियर फॉर प्लंडर एंड दे वेंट बैक एक्सेट्रा। सो वो भी हम देखेंगे। इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट एज सच, बट येस, इट इज ट्रू विद सम पीपल, इट इज नॉट ट्रू विद सम अदर पीपल, तो वो भी हम देखेंगे। बट आई होप टिल हियर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लास्ट पॉइंट कौन सा लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कौन सा? विच लास्ट पॉइंट नैन्सी? कौन सा लास्ट पॉइंट? I all of you getting this process? Yes, please. Yes. Nancy, which last point can you please tell me? Which कौन सा last point आपको समझ में नहीं आ रहा है? Sir, came after religion, change and higher. So I didn't get why they came only in India. Okay. See, the idea is you are attracted towards, let's suppose कि, you know, if I ask the Central Asian regions जो आज भी हैं, why the Central Asian region exists as a strategic region? The simple thing is that trade routes used to crisscross from India to Europe through the Central Asian region. आप सेंट्रल एशिया के ज्योग्राफी को देखिए, वीरान है। इट्स ऑलमोस्ट दैट it doesn't have many important rivers that India has. For example, India or Indian system में
या इवन चाइना में आप देखिए, यू हैव यांगत्से रिवर, यू हैव the mighty Brahmaputra regions. You have the Indus River system, the Ganga River system. Look at Myanmar, you have the Irrawaddy system. Uh, what system do you have in Central Asian region? There is one Caspian Sea, and from that you have some of the rivers like Helmand, Oxus, and they are very small rivulets. बहुत small rivulets हैं. The Caspian Sea doesn't yield fresh water, and that it creates many issues. On the other side, uh, if you would just notice, रशिया में दन्यूबे है और रशिया में यू हैव द वोल्गास विच इज वेरी फार अवे रिमूव्ड. ओके, सो आप सेंट्रल एशिया में प्रोस्पेरिटी का जोन देखते ही नहीं है. सेंट्रल एशिया प्रॉस्पर करता रहा है हमेशा से बिकॉज वो मेजर एशिया और यूरोप के बीच की एक ब्रिज है. तो अगर ट्रेड फॉलो या ओरिजिन हो रहा है यूरोप से और इंडिया से, तो आप या तो यूरोप में जाएंगे या तो इंडिया में जाएंगे. आई गिव यू वन एग्जांपल. टर्की में एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क है जो अब मॉस्क बन गया है बिकॉज ऑफ एर्डोगान. इट्स कॉल्ड हाया सोफिया मॉस्क. At once upon a time, Hagia Sophia की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, it was a church. Basically, it was a church. But then the present day Turkey establishment says that no, before becoming a church during the uh, you know Constantinople rule and during the papal rule, it used to be a mosque. So church बना, mosque बना, उसके बाद वापस mosque बना या उसके पहले mosque था. It doesn't matter. It means that वो area आपके लड़ाई का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, बिटवीन टू वॉरिंग फैक्शंस. और इसको आप सिर्फ रिलीजन के एंगल से नहीं समझ सकते, ऑल्सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगल. इंडिया में आने का एक ही रीजन है. इंडिया इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल योर ट्रेड्स. तो हमारे यहां से स्पाइसेस जाएंगे. क्या सेंट्रल एशिया में स्पाइसेस होते हैं? नहीं हो रहे. तो हमारे यहाँ से स्पाइसेस जाएंगे. सिल्क जो है वो भी हमारे यहाँ से जाएगा. हमारे यहाँ से मतलब चाइना से जाएगा, लेकिन ट्रेड रूट हमारे वाले से जा रहा है. ठीक है, हमारे यहाँ से कॉटन जा रहे हैं. क्या सेंट्रल एशिया में कॉटन हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो सेंट्रल एशिया में हो क्या रहा है? ठीक है, हमारे यहाँ से सेमी प्रेशियस स्टोन्स जा रहे हैं, गोल्ड जा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स जा रहे हैं, आ रहे हैं. दैट मीन्स you will want to go to the center of origin rather than be a middle person. तो कभी ना कभी आपकी ये मंशा होगी कि आप ओरिजिन पे चले जाएं, जो कि उनकी आइडियोलॉजी थी, जो कि उनकी आइडियोलॉजी रही. एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दैट बिफोर फाइंडिंग ऑफ ऑयल, इससे पहले कि ऑयल आता है आज तो, एंड आई एम वेरी मच अमेज्ड लुकिंग एट द प्रॉस्पेरिटी triangle which is created in the Middle Eastern regions, except for Saudi Arabia को छोड़कर यमन आप देख सकते हैं, ओमान या यूएई को छोड़कर बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर नॉट स्टिल प्रॉस्परस. वो आज भी प्रॉस्परस नहीं है. अगर आप ऑयल को इक्वेशन से हटा दीजिए, these will become readily what you call as the third world countries, right? बट इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स प्रॉस्पेरिटी थ्रू द एजेस. हम अपने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम हुआ है सो हुआ है, लेकिन सेंट्रल एशियन रीजन्स, द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, दे हैव ऑल सफर्ड ह्यूज disparity only for the natural resources which is now coming up in all these areas. कि आप वहां पर प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, वो भी प्रॉस्पेरिटी कुछ रीजन्स में देखते हैं, बाकी सारे रीजन्स में नहीं देखते हैं. आज जो पाकिस्तान का हाल है वो अफगानिस्तान के हाल से ज़्यादा अलग नहीं है. तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जो हैं वो एक ज़माने में सोवियत के साथ इसलिए थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड. तो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में वो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, ये किसी ने किसी को बताया ही नहीं, राइट? बिकॉज दे वर अंडर द शैडो ऑफ ब्रिटिशर्स और रशियंस. तो उन्हें ये लगता रहा कि एक हायर हेजेमोनिक पावर जो है वो हमें कंट्रोल करती रही है और हम बीच में बने रहेंगे, दैट इज ओके. बट व्हेन दीज नेशंस केम ऑफ देमसेल्व्स, लुक एट व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, राइट? या तो वो चाइना के भरोसे रहेंगे या वो रशिया के भरोसे रहेंगे. इंडिया को एक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं. हम उन्हें ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारे बीच में
दो ऐसे देश हैं जो हाईली अनस्टेबल हैं, एंड दैट एक्सप्लेन्स ऑल। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस प्लीज। Sir, one thing why people like Kushans and Shakas didn't try to do the same as they could also do after getting conquered. See, Shakas and Kushans. Nowadays, I'm doing a bit of research for one of my thesis. Shakas और Kushans जो हैं, they were extremely hybridized people. एक्सट्रीमली हाइब्रिडाइज्ड, मतलब शाकाज और कुशांस जो हैं बाद में संस्कृताइज्ड बन जाते हैं, संस्कृत बोलने लगते हैं। कुशांस जो हैं अपने आप को शेवाइट बोल रहे हैं, प्रैक्टिस बुद्धिज्म का करवा रहे हैं। इवन दे आर प्रिंटिंग द और स्टैंपिंग द कॉइन्स ऑफ लक्ष्मी ऑन देयर कॉइन्स। तो इतने सारे हाइब्रिडाइज्ड कल्चर को देखने का या लाने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बताना चाहते हैं इंडियन लोगों को या इंडियन लार्जर मेन फ्रेम को कि देखिए, वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम यूची ट्राइब्स। हम कुशांस को क्या बोलते हैं? दे आर यूची ट्राइब्स, दे आर नॉट फॉलोइंग अ रिलीजन। सो बेसिकली ट्राइबल्स जो कबीले हैं उनका अपना कोई स्टेटेड लॉ, टेक्स्ट, धर्म जो है वो नहीं है। वो प्रॉस्पर करता है या तो कल्ट से, या प्रॉस्पर करेगा किसी नेचर वर्शिप के कल्ट से, या प्रॉस्पर करेगा किसी हीरो वर्शिप के कल्ट से। जो मेन रिलीजियस डॉगमास होंगे, चाहे वो हिंदुइज्म का होगा, चाहे वो इस्लाम का होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का होगा, वो जहां पर जाएंगे उस एरिया को आत्मसात कर लेंगे, उस एरिया को पकड़ लेंगे। सो व्हेन दे केम हियर, दे were into the influence of Hindu cultures, or they were influence of Vedic cultures, and they were influence of बुद्धिस्ट कल्चर। उन्हें लगा कि यहाँ पर इक्लेक्टिक कल्चर है, भाई बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस हो रहा है, शक्तिज्म भी प्रैक्टिस हो रहा है, वैष्णविज्म भी प्रैक्टिस हो रहा है, शैविज्म भी प्रैक्टिस हो रहा है, इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब चलो भाई सबको कुछ ना कुछ दे के खुश करते हैं। एंड एज यू नो, दे वर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड इन द ब्राह्मणिकल आइडियल्स। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के एक किसी वर्ण में वो आना भी चाहते थे। नाउ कंपेयर दिस टू द सेंट्रल एशियन पीपल ऑफ मिडिवल इंडिया, कि वो वैदिक ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होने के बजाय वो इस्लाम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बिकॉज इस्लाम एक, आप इस्लाम के एडवेंट को नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट एक किताब है जो मैंने आपको बताई थी, विपुल सिंह की। उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, राइज ऑफ इस्लाम। आई थिंक आई हैव इट इन माय लाइब्रेरी, आई विल शो इट टू यू। उस चैप्टर में वो बताते हैं दैट इस्लाम बीइंग एन इगैलिटेरियन रिलीजन, बिकॉज बुद्धिज्म भी उस समय स्ट्रेटिफाइड हो चुका था, बुद्धिज्म में भी क्लासिफिकेशंस बहुत आ गए थे। और वैदिक हिंदुइज्म में हमने देखा था कि पैरोकिलिज्म आ गया था, यानी कि कंजर्वेटिज्म आ गया था, कास्टिज्म आ गया था, आउटसाइड कास्ट, आउटसाइड वर्ण, काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए थे। तो एक ट्राइबल कबीले के लिए जो रिलीजन सिंपल दिखता हो, जो रिलीजन प्रोसेल्टाइजिंग दिखता हो, जो रिलीजन आपको आपके बैकग्राउंड को ना देखता हो, जो रिलीजन आप किस रीजन से आ रहे हैं उसको ना देखता हो, जो रिलीजन कास्ट, क्लास के डिफरेंस को ना मानता हो, जो रिलीजन ये बताता हो कि everyone should pray to only one god and not many gods, because then you get confused. And then ऐसे सिंपल इगैलिटेरियन नॉन डिसिप्लिनेरियन रिलीजन के तरफ जाना उनके लिए ज्यादा आसान था, एज कंपेयर टू दोज रिलीजन जो इतने सालों की स्ट्रेटिफिकेशन से और इतने सालों के एवोल्यूशन से आए हैं, और वहां पर हजारों देवी देवताओं के पूजा की पद्धति है। कोई प्राकृत में पूजा कर रहा है, कोई पाली में कर रहा है, कोई संस्कृत में कर रहा है, कोई दक्कनी में कर रहा है। So you are getting the context of popularization of Islam at that point of time, कि उस समय इस्लाम जो पॉपुलर हो रहा है वो अपने इगैलिटेरियनिज्म की वजह से हो रहा है। जैसे कि एक जमाने में सिखिज्म आएगा और सिख कल्ट आएगा या सिख धर्म आएगा, तो सिख धर्म भी अपने आप को एक इगैलिटेरियन, एक सिंपल, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताएगा कि भैया यहाँ पर ना कोई ऊंचा है कोई नीचा है,
सब एक हैं और सब सिर्फ एक को ही पूछते हैं, आप सब में कोई कास्ट का डिफरेंस नहीं है, आप सब में कोई क्लास का डिफरेंस नहीं है, आप सब में कोई पूजा की पद्धति का डिफरेंस नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो इगैलिटेरियनिज्म आपको तब खींचती थी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था खींचने का ये कि आपका ओहदा उस रिलीजन में ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप अपने जैसे 5 लोगों को और जोड़ लीजिएगा। आप लोगों ने वो आजकल इंडिया में वो बड़ा मीम चला है मार्केटिंग नेटवर्किंग का कि मैं मतलब आप 5 लोगों को जोड़ लीजिए एंड मतलब आप, और आपको नीचे 4-5 लोगों को जोड़ना है, वो 4-5 लोगों को जोड़ देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई डोंट नो। एक मीम्स आते हैं ना कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, आई डोंट नो व्हाट दैट, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल दे डू दैट, ठीक है ना? 3 लोग को जोड़ दीजिए, 4 लोग को जोड़ दीजिए, सो पीपल लाइक, आपको कैसा लगेगा कि आप कहेंगे अरे भाई 10th पास है तो क्या हुआ, मैं 10th पास हूँ, मैं 12th पास हूँ, लेकिन मैंने 4-5 लोगों को अपने नीचे जोड़ लिया, अब मेरे खाते में इतना पैसा है ना? ये बिजनेस चलता है ना आजकल, आई डोंट नो व्हाट दैट इट इज कॉल्ड, आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आर गेटिंग इन, नॉट इन अ मतलब नॉट इन अ बैड वे, बट दैट थिंग दैट आपको यू नो आपको पारंगत होना जरूरी नहीं है, आपको दार्शनिक होना जरूरी नहीं है, आपको न्याय मीमांसा की बात करना जरूरी नहीं है, आपको अ, इन सब चीजों के बारे में बात करना, या मल्टी, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे जैनिज्म में भी, एंड दिस इज ट्रू विथ ऑल द रिलीजन्स विच वाज देयर टेकिंग बर्थ इन इंडिया, कि सारे के सारे रिलीजन इतने दार्शनिक थे कि वो मल्टीट्यूड्स ऑफ फेथ को अपने अंदर समाहित करते थे। अब ऐसे में इतना ज्यादा जो डिफरेंस होगा, और कोई दूसरा रिलीजन बताएगा कि देखो भाई बाकी सब खत्म है, सिर्फ एक गॉड है, सिंपल थॉट्स हैं, सिंपल डिसिप्लिन है, और आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ोगे, प्रोसेल्टाइज करोगे, उतनी ज्यादा आपकी भी अहमियत बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपकी भी रुतबा बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना? So that became the reason that why people were following Islam in the Middle Eastern regions and in the regions of Afghanistan, India, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan regions, the Middle Central Asian regions, and then proselytizing people in the eastern sections, and that is your India. Are you getting it now? समझ में आ रहा है? डाइवर्सिटी किसी को नहीं चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, डाइवर्सिटी किसी को नहीं चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भैया यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और फिर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि एक ऐसा है कि चलो एक एग्जाम ये है कि आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है, वो किताब से ही क्वेश्चन आएगा, और उसके अलावा और किसी किताब से क्वेश्चन नहीं आएगा, और उसमें जो भी आएगा, जो भी दिया हुआ है वही आपको मानना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप कौन सा एग्जाम दोगे? एंड देन यू विल बिकम ग्रुप ए ऑफिसर ऑल्सो। तो आप कौन सा एग्जाम दोगे? यूपीएससी दोगे कि वो किताब वाला एग्जाम दोगे जो सिर्फ एक किताब पढ़ के आपका काम हो जाएगा? आर यू गेटिंग इट? सो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द लैटर वन, है ना? आप ज्ञान की सागर जो है वो किसी को चाहिए नहीं until and unless it leads to you to some kind of materialism, है ना? So that is the thing about that everyone wants a simple life towards achieving that goal, and that is where egalitarianism strikes its presence. And Islam was being egalitarian, there is no doubt in that. Islam was being a very if I would say simple, ऑल वेलकमिंग रिलीजन, जो एक जमाने में बुद्धिज्म भी था, जो एक जमाने में जैनिज्म भी था, ठीक है ना? ओके। Sir, I observe that one thing in entire history, that everyone is using religion as a tool for their own benefits, like institution unethically. See, religion is embedded in politics, and hence we are studying religion also. But we are studying religions from historical point of view, from where they are coming and what form they are coming. ठीक है? ओके। तो आई थिंक इस प्रोसेस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है। आई थिंक नाउ नाउ यू अंडरस्टैंड इट, और अब जब हम आगे पढ़ेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई एंड हु दीज पीपल आर, हु दीज
Subuktigin, Alaptigin, Mohammed bin Qasim, Mahmud of Ghazni, and Mohammad Ghori are, and what is the thought process behind them? I hope you are getting it now. अब आपको समझ में आ रहा है everybody? Yes, please. मेरा मेन मतलब वो है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों अटैक कर रहे हैं, अचानक से नहीं आए हैं, इनका कन्वर्जन का प्रोसेस कहां से हुआ है, ठीक है। और अब जब आ रहे हैं, सो व्हाट इज देयर आउट व्यू ऑफ इंडिया एज सच? यस प्लीज। ओके, एवरीबडी, स्पेशली दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग द प्रोसेस गाइज? जो नए स्टूडेंट्स हैं, आर यू फॉलोइंग द प्रोसेस? अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी, मैं क्लास के एंड में क्वेश्चन नहीं लेता हूं। ओके, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ। सर, देयर अटैक फॉर स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड बिकम प्रॉस्परस, विल सी। अब हम एक एक करके लोगों को देखेंगे, विल ऑल्सो सी इंडियन डायनेस्टीज, हम इंडियन डायनेस्टीज भी देखेंगे। सर, आपने पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के बारे में बताया था, क्या बताया था? रशियन एम्पायर का भी नाम लिया था। मैं ये कह रहा था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो एक ज़माने में सोवियत रशिया के अंदर हुआ करते थे ना, वो सोवियत के पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए सोवियत का पार्ट हुआ करते थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट they are either dependent on British India or dependent on Russia in the time period of 1600 से लेके 1900 तक, so till that time period. सर, व्हेन इज इस्लाम इंट्रोड्यूस? 7th 8th सेंचुरी से आ रहा है, ठीक है, फाइन। सो वी हैव done the process or the context in which these people are coming, or the tribals of northwestern frontier provinces are coming. Okay, now इंडिया में जो था, इंडिया की अपनी एरिया में, यानी कि इंडिया के अपने मेनलैंड में क्या चल रहा था, हमें वो भी देखना है इसी टाइम पीरियड पे, दैट व्हाट वाज हैपनिंग। वी हैड सीन कि इससे पहले जो एम्पायर थी यहाँ पर, वो गुर्जर प्रतिहार एम्पायर थी, एंड एज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि इंडिया की पॉलिटी इस समय में डिसेंट्रलाइज्ड या डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी है ना, कि एकात्रित नहीं है। देयर इज नो वन सिंगल रूलर हु इज ऑक्यूपाइंग अ लार्जर स्वैथ ऑफ लैंड, बट डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी है। तो गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूट्स जो यहाँ पर थे, इन सब लोगों ने अपने आप को खत्म किया, डिवाइड किया। बाय द टाइम ऑफ 9th century they are all gone, they are all gone away from India, and after them नॉर्थ इंडिया में राजपूत डायनेस्टीज आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो राजपूत डायनेस्टीज स्टार्ट कमिंग अप, और आप पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन एक्सपांस में देखेंगे कि एक अलग टाइप का प्रेजेंस है। ओके, देयर वाज अ डिफरेंट प्रेजेंस आउट देयर, और यहीं पे आता है राइज ऑफ राजपूत्स, जिसको हम दो प्रोसेस में देखते हैं। वन, एक पॉलिटिकल राइज है कि ये पॉलिटिकली कहां पे कौन सा रीजन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और दूसरा है इनका अपना सोशल राइज, कि ये क्लास कहां से आ रही है, ये वर्ड कहां से आ रहा है, क्लास या कास्ट कहां से आ रहा है, ऑफ राजपूत, द टर्म राजपूत। तो ओरिजिन ऑफ राजपूत is explained by a phenomena in history which is called as proliferation of castes। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल कि कौन सी नई कास्ट गुप्ता टाइम पीरियड पे आई थी? वी हैव ऑलरेडी सीन। अगर आपको ये याद होगा तो ये राजपूत वाला समझाने में और ज्यादा इस्लाम आसान हो जाएगा। विच न्यू कास्ट केम इन गुप्ता टाइम पीरियड, जिसको हमने प्रोलिफरेशन में पढ़ा था? यस प्लीज, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एंशियंट मेरे साथ नहीं किया है, आई वांट टू आस्क देम। गुप्ता टाइम पीरियड में एक नई कास्ट आ रही थी। यस, कैन एनीबडी टेल मी गाइस? जिन लोगों ने एंशियंट किया हुआ है दे नो, बट आई एम आस्किंग कि those have not done ancient with me, I'm asking.
Huns are outsiders, but uh, yes, कायस्थ्स, ठीक है. सो कायस्थ्स वर कमिंग, अ न्यू क्लास वर कमिंग. गुप्ता टाइम पीरियड में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. वहां पर हमें पता चलता है दैट कायस्थ्स, और जिसको कभी कभार कर्ण भी बोलते थे, दे स्टार्टेड कमिंग अप एज एन अकाउंटेंसी ग्रुप ऑफ पीपल who had to maintain files, जिनको फाइल्स मेंटेन करना होता था फॉर लैंड ग्रांट्स, बिकॉज लैंड ग्रांट्स गुप्ता में बहुत ज्यादा हो गए थे. अब लैंड ग्रांट्स गुप्ता में ज्यादा हो गए हैं तो भैया उसके लिए एक अलग से प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है. लेकिन कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कायस्थ को कहाँ रखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस वर्ण में कहाँ रखेंगे आप कायस्थ को? वेयर विल यू कीप कायस्थास? आप इस वर्ण में कौन कहाँ पे रखेंगे? सर, चांडालास आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. बिल्कुल सही, चांडाल्स वर आल्सो देयर. ठीक है. बट इफ आई आस्क यू दैट वेयर विल यू कीप कायस्थ्स आउट देयर, इस वर्ण हायरार्की में आप कायस्थ को कहां रखते थे? द कायस्थास वर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वर्णास. कायस्थ अपने आप को आज भी इन चातुर्वर्ण से अलग मानते हैं. कायस्थ अपने आप को आज भी ब्राह्मणों से अलग, क्षत्रियों से अलग मानते हैं. ओके. सो कहने का मतलब ये है दैट देयर वाज अ बर्थ ऑफ अ प्रोफेशन, और प्रोफेशन ने फिर कास्ट का जन्म लिया. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने सोसाइटी में एक नई क्लास को जन्म दिया. उन्होंने सोसाइटी में एक नए पद को जन्म दिया, या एक नए, जिसको कहते हैं ना, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, उनके वजह से आ रहा था. ओके. सो दिस वाज अ न्यू कास्ट विच वाज कमिंग. मोस्टली कास्ट का आना या तो अनुलोम या विलोम प्रक्रिया से बताया जाता है. सॉरी, प्रतिलोम और अनुलोम प्रक्रिया से बताया जाता है. दैट्स, यू नो, दैट आइदर यू मैरी बिलो योर वर्ण और आइदर यू मैरी अबव योर वर्ण. यानी कि फादर जो हैं वो ब्राह्मण हैं, मदर जो हैं वो क्षत्रिय हैं, तो दैट इज अनुलोम. प्रतिलोम इज उल्टा, जब मदर जो है ब्राह्मण होंगे और फादर जो है वैश्य होंगे, सो दैट इज उल्टा. बट आप ये समझ सकते हैं दैट व्हेन टू वर्णास मिक्स टुगेदर, हैव अ मैरिज टुगेदर, द ऑफस्प्रिंग्स हैव दिस चैलेंज ऑफ कॉलिंग देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ द विच वर्ण, कि आप कौन से वर्ण के आ रहे हैं. At that point of time, what the process is called as वर्ण समकर, उसे हम कहते हैं वर्ण समकराज. लेकिन वर्ण समकराज या कमिंग अप ऑफ न्यू प्रोफेशन की वजह से हो सकता है नई कास्ट आ जाए, या वर्ण समकर की वजह से हो सकता है नई कास्ट आ जाए. ठीक है. तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये नई कास्ट को जन्म देते हैं. अब इसी बीच में 11th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी के बीच में राजपूत एक नया टर्म आ रहा था. आज तो हम राजपूत को बहुत आराम से इमेजिन कर लेते हैं, बट अंडरस्टैंड दैट दिस टर्म वाज कमिंग अप न्यू. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ देयर इज एनी राजपूत इन द क्लास, अगर कोई है आप में से कोई राजपूत, तो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, लाइक डू राजपूत कॉल देमसेल्व्स एज क्षत्रिय? क्या राजपूत अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, या क्षत्रिय अपने आप को राजपूत बोलते हैं? इज दैट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? क्या इन दोनों टर्म में कोई डिफरेंस है? यस प्लीज, एनीबडी? क्या राजपूत और क्षत्रिय टर्म में कोई डिफरेंस है? सर, क्षत्रिय अपने आप को राजपूत बोलते हैं, तो राजपूत अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, है ना? जब आप पर्टिकुलरली राजस्थान के सोसाइटीज में जाएंगे, पर्टिकुलरली राजस्थान के रूलिंग डायनेस्टीज में जाएंगे, मान लीजिए आप मेवाड़ के घराने में चले गए, या आप सिसोदिया घराने में चले जाइए, या आप जो है मारवाड़ के जोधपुर के घराने में चले जाइए, वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं. वो अपने आप को राजपूत बोलते ही नहीं है. इनफैक्ट दे कीप कॉलिंग देमसेल्व्स एज क्षत्रियास. फॉर एग्जांपल डोगराज कीप कॉलिंग देमसेल्व्स एज क्षत्रियास. दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एज राजपूत्स. बट देन देर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को चंद्रवंशी और सोमवंशी कहते हैं, एंड देन वो ये कहते हैं कि सर हम राजपूत हैं.
they would also call themselves as Kshatriya, but Kshatriya don't call themselves as Rajputs. Particularly राजघराने के लोग जो हैं वो अपने आप को क्षत्रिय ही बोलना पसंद करते हैं और बोलते रहते हैं. They don't call themselves as Rajputs. So what is the difference between all of these two? ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और अगर दोनों ही रूलिंग क्लास रही है या दोनों ही लैंड होल्डिंग क्लास रही है, जो कि आइडियली रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये टर्म का डिफरेंस क्यों आता है? हम राजपूत एज अ टर्म का मतलब ही क्यों फिर अलग बोलते हैं अगर वो सेम ही है? तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस शुड कम इनटू माइंड, एंड सिंस वी आर डूइंग वन केस स्टडी एंड दैट इज राजपूत. ओके, सो ओरिजिन ऑफ राजपूत अगर आप थियरी में देखते हैं, ओरिजिन ऑफ राजपूत इज नॉट अ वेरी एंशियंट ओरिजिन. ये हम कहते हैं दैट दिस इज अगेन अ 9th सेंचुरी ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं अग्निकुल मिथ. ठीक है, तो अग्निकुल से राजपूतों का एक प्रकार से उद्भव हुआ है. स्टोरी ये रही है कि वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो माउंट अबू पे बेसिकली यज्ञ कर रहे हैं. क्यों यज्ञ कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ के एरियाज के ब्राह्मण्स और काउज, ब्राह्मण्स और गऊ की रक्षा करने के लिए वहां पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, और अटैक्स में उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है. इवन क्षत्रिय डायनेस्टी को बहुत सारे सोल्जर्स की जरूरत है. और अग्नि हवन हो रहा है, और हवन के थ्रू जो है वशिष्ठ जो है दो क्लैंस को जन्म दे रहे हैं, और वो हैं चंद्रवंशी और सोमवंशी राजपूत. और अग्निकुंड से दो व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है. वन इज चंद्रवंशी एंड द अदर इज सोमवंशी, और यहाँ से आपके दो क्लैंस ऑफ राजपूत का जन्म होता है, जो फिर बाद में वॉरियर बनते हैं, फाइटर्स बनते हैं, और ब्राह्मण्स और गऊ की रक्षा करते हैं. एंड दे प्रोवाइड द मैन पावर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑनर एंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म. और धर्म और ऑनर के एस्टैब्लिशमेंट को स्थापित करने के लिए राजपूत फिर मदद करते हैं. अब ये जब स्टोरी है, दिस इज द स्टोरी आउट देयर. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी? आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू कम अबाउट दिस स्टोरी? ये हमारी, अगर मैं कहूं तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है विद द ओरिजिन ऑफ राजपूत. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी? आप क्या समझते हैं? आदर्श, आई विल कम टू दैट पॉइंट, आई विल कम. यस. मतलब डोंट टेक स्टोरी जस्ट, ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अग्नि से नहीं निकल रहा है एक्सेट्रा, बट मतलब इस स्टोरी का तात्पर्य आपके लिए क्या मिलता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस स्टोरी? यस. यस प्लीज. सर, few people were trained to protect society. They're attaching divinity to them to get legitimacy. ठीक है, legitimacy के लिए divinity attach किया जा रहा है. Means a new warrior class is coming because of foreign invaders. नहीं, see, Vedant, mythological stories, we don't take it at face value. Of course, we don't take it at face value, but they also give some hint of historical process. So we are trying to see the historical processes also, and we'll see that historical process. We'll come to it. So Rajput is trying to trace their lineage from past. सर, तब उससे पहले रामायण में कैसे क्षत्रिय आ गए? एग्जैक्टली, तो क्षत्रिय पहले थे, राजपूत बाद में आ रहे हैं. ओके, सो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दैट वन, यू हैव डर्थ ऑफ पीपल. सबसे पहला ये है कि आपको लोगों की कमी है, वॉरियर्स की कमी है. ठीक है, क्षत्रिय आर रूलर्स, बट आपको वॉरियर्स चाहिए. ठीक है, तो जो रूलर्स हैं वही वॉरियर्स बन रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है. इट्स लाइक सेनापति अलग होते ही है और सेना अलग होता है, राजा अलग होते हैं और राजा के अंदर काम करने वाले अलग होते हैं. आप लोगों को याद है दैट आई टोल्ड यू अ प्रोसेस ऑफ फ्यूडलिज्म, जो मैं आपको बता रहा था. और इसको थोड़ा अगर हम समझे ना प्रोसेस के साथ, देन वी आर एबल टू अप्रिशिएट दिस. सिंस सम ऑफ यू आर सेइंग कि सर ये माइथोलॉजिकल मम्बो जम्बो है, बट एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि फ्यूडलिज्म जो था दैट वाज स्टार्टिंग टू हैपन. दैट मींस किंग वाज डिपेंडेड अपॉन फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना? याद है?
गुप्ता टाइम पीरियड में या हर्षा टाइम पीरियड में किंग जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे. यस प्लीज. किसके लिए डिपेंड कर रहे थे? किसके लिए डिपेंड कर रहे थे? यस प्लीज. They were depending on for what? Can I say that they were depending upon soldiers? They were depending upon what? They were depending upon soldiers. किंग उसके बदले में फ्यूडल लॉर्ड्स को क्या दे रहे थे? वॉज देयर कैश विच वॉज गिवन? क्या कैश दिया जा रहा था? किंग फ्यूडल लॉर्ड्स को कैश दे रहे थे कि लैंड दे रहे थे? वर दे गिविंग कैश और लैंड? क्या दिया जा रहा था? लैंड ग्रांट्स. अंडरस्टैंड दैट अ सोसाइटी which functions on land grants, a society और a feudal lord जो लैंड ग्रांट के बेसिस पे चलता हो, वो सोल्जर्स नहीं, वो किसान पैदा करता है. आप सब लोगों ने मॉडर्न इंडिया किया हुआ है. इन मॉडर्न इंडिया, when we were doing 1857, we said that one of the greatest reasons of revolt in Awadh was that Awadh was annexed. And there is a book of Eric Stokes जिसमें वो कहते हैं peasants armed. Basically, the soldiers of East India Company were peasants of the Awadh region, and because their region was annexed, they kind of rebelled against the company Raj. याद आ रहा है? Are you getting it? मतलब इंडिया में ये ट्रेडिशन फ्यूडलिज्म की तरफ से आ चुकी थी या फ्यूडलिज्म की वजह से आ चुकी थी कि वो सोल्जर्स जो सोल्जर्स का काम करते थे वो सिर्फ सोल्जर्स का काम नहीं करते थे, वो किसानी का भी काम करते थे. वो बेसिकली अपने खेतों में भी काम करते थे बिकॉज दे वर गिवन नॉट कैश, यू आर गिवन लैंड. एंड व्हेन यू आर गिवन लैंड इन द ल्यू ऑफ सैलरी यू आर बाउंड टू बिकम अ पेजेंट. एंड विल यू बिकम अ सोल्जर? क्या आप सोल्जर बनेंगे जब आप एक पेजेंट हो? पर्टिकुलरली इन दोज एजेस, 7th 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, जब आप आपस में लड़ रहे हैं, जब कैश फ्लो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा इनवर्ड लुकिंग डायनेस्टीज हैं, इनवर्ड लुकिंग प्रोसेसेस हैं, राइट? आप ज्यादातर कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र पढ़ के वहां पर लिखा हुआ है कि आप मूंज ग्रास को आगे मत जाइएगा, आप फॉरेन एरियाज में मत जाइएगा, आप अगर अपने ग्राम धर्म और कुल धर्म को छोड़ते हैं तो यू विल लूज योर कास्ट. विल यू बिकम अ सोल्जर और विल यू बिकम अ किसान? यस प्लीज. और अ पेजेंट? आप क्या बनोगे? आर यू गेटिंग द प्रोसेस? तो 2 दशकों तक, मतलब फॉर 2 centuries यू वर इनवर्ड लुकिंग. आप अंदर ही अंदर बैठे हुए थे, है ना? एंड देन सडनली यू रियलाइज कि 10th सेंचुरी में बाहर से ये कबीले आ रहे हैं जो किसानी नहीं करते हैं, जो ट्राइबल हैं. बाहर से ये ट्राइबल्स आ रहे हैं और नई रिलीजन लेके आ रहे हैं और हमारे रिलीजन को या हमारे सोसाइटी को अटैक कर रहे हैं. एंड देन यू आर कमिंग एंड देन यू आर सिटिंग हियर एज पेजेंट्स. माय गॉड, यू नीड सोल्जर्स. You do need those people for protecting your boundaries. Because 200 साल तक आपने सोल्जरी छोड़ दी, बिकॉज सोल्जर्स का कोई इंसेंटिव नहीं बचा आपके पास. अब आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है. राजपूत का धर्म है क्या? शस्त्र उठाना. ऐसा इंसेंटिव क्यों दिया गया है? क्यों बोला गया है कि राजपूत का धर्म है शस्त्र उठाना? ऐसा क्यों नहीं बोला गया है कि राजपूत का धर्म है हल उठाना? हैव यू थॉट अबाउट दिस? Why? Because you need damn soldiers. Otherwise, your boundaries will not be protected. You need to come out of that feudal setup. Otherwise, your dynasties will be taken up by those people who are waiting at the frontiers to proselytize, to convert, as well as to take that areas, to take your areas. Are you getting this process? समझ में आ रहा है ये process? Everybody. Yes, please.
Yes, Khatris also, Khatris, the word Khatris, the Khatris as such were a merchant class, but they also considered themselves as Kshatriyas, right? But जब खालसा formation हुई थी, they all became, you know, as such, what you call as, you know, uh, वॉरियर्स. सर मनुस्मृति एंड धर्मशास्त्र का रोल नहीं समझ में आया था. अरे हम लोग ने कल धर्मशास्त्र पढ़ा था ना, वी वर स्टडिंग ना यस्टरडे. कल हम लोगों ने धर्मशास्त्र वाले टेक्स्ट पढ़े थे और हम लोग ने क्या देखा था, पैरोकिलिज्म आ रहा है ना, इनवर्ड लुकिंग सेंस आ रही है. हम ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, दिस सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में लिखा हुआ है, धर्मशास्त्रास वेर कंपाइल्ड in which ban is put on travel beyond the areas where moon's grass does not grow and travel across the salt seas were also considered polluting. आपको ये बोला जा रहा था इस समय, that is this time period of 7 to 9 century AD, that please follow ग्राम धर्म, ग्राम धर्म फॉलो करिए. अरे कल मैंने आपको थॉमस मेटकाफ की बारे में बात बताई थी ना, थियरीज ऑफ राज, याद है? मैंने आपको कहा था दैट दे कॉल द इंडियन विलेजेस एज लिविंग आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन. याद है? आप भूल जाते हो इतनी जल्दी. जजमानी सिस्टम एक्सेट्रा, राइट? सो बेसिकली यू वर इनवर्ड लुकिंग, ऑल ऑफ यू, ठीक है? एंड दैट क्रिएटेड द नीड ऑफ सोल्जर्स when people came knocking to your doors. Okay, now this is the political process. अभी भी राजपूतों की ओरिजिन की कहानी कंप्लीट नहीं हुई है. आई हेट व्हेन देयर इज अ सिंपल, मतलब किसी ने यहाँ पे लिखा है कि सर मतलब खून से आ गए थे राजपूत एक्सेट्रा. दैट्स अ वेरी सिंपल नरेटिव. हिस्ट्री इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगती है लोगों को क्योंकि सब लोग को चाहिए एकदम सिंपल नरेटिव. आई हेट व्हेन यू स्पीक अबाउट सिंपल नरेटिव्स. नरेटिव्स आर ऑलवेज प्रोसेसेस, ठीक है? तो अभी तो सिर्फ हमने माइथोलॉजिकल प्रोसेस किया है. राजपूत के ओरिजिन का सिर्फ एक माइथोलॉजिकल प्रोसेस है. अब मैं पॉलिटिकल प्रोसेस पे आऊंगा. मतलब हम लोग ने सोसाइटल प्रोसेस किया कि सोसाइटी कैसे जस्टिफाई कर रही है कि आप कहां से आ रहे हैं, आप कैसे आ रहे हैं, आप अग्निकुल से आ रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या था ये हमें पीछे से पता चलता है. अब इसका पॉलिटिकल रीजन भी है, ठीक है, बट वो मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा. बिफोर आई गो टू पॉलिटिकल रीजन, समझ में यहां तक आ रहा है सबको? जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है सर? बट खत्री, बनिया, महाजन एक्सेट्रा ऑल कम अंडर वैश्य क्लास. मलिका, खत्रीज आर मर्चेंट क्लास but Khatris used to call themselves as Kshatriyas. वहीं से आता है the word Khatris. Particularly those, देखिए सारे के सारे पंजाबीज ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है? इसमें कोई वो चीज नहीं है कि अचानक से ट्रेडर्स कैसे हो गए. ये हिस्टोरिकली ट्रेडर्स हैं. क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रहते हैं, ठीक है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रहने का मतलब है कि आप इंडिया या आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के बीच में रहने वाले लोग हैं. तो आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मद्रास में रहने वाले व्यक्ति तो ट्रेड नहीं करेंगे. मद्रास में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो प्रोफेशन में रहते हैं, वो नौकरी करते हैं. इसका भी अपना हिस्टोरिकल रीजन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? बिकॉज आप ट्रेडर नहीं है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ओके, सो बिकॉज यू आर कंफ्यूजिंग ट्रेडिंग विथ बीइंग क्षत्रिय, so that's why you are saying कि सर वो वैश्य है, but ऐसा नहीं है, ठीक है? But please understand that we are speaking, although it would sound casteist and I would not like to sound casteist, but please understand that we are here talking about historical processes. We are not talking about the present day status of societies in India. आज तो आप जो भी बनना चाहें वो free है, okay? But we are talking about historical processes as such. So I hope you understand what I'm trying to say here as far as the Rajput theory of अग्निकुल ओरिजिन इज कंसर्न. आर यू ऑल गेटिंग दैट प्रोसेस कि हमारे यहां पर 7th 8th सेंचुरी तक फ्यूडलिज्म था. फ्यूडलिज्म के वजह से हमने कभी भी अपने सोल्जर्स को जमीन से हटने नहीं दिया. ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैड डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी. तो वो सोल्जर एक पेजेंट का काम ज्यादा कर रहा था. और जब हमारे यहां पर अटैक्स होने लगे या इंडियन फ्रंटियर्स पर Western attacks होने लगे, then you needed soldiers, and then the word of Rajput is coming up. Then full-time soldiers are needed.
full time Rajputs are coming up, full time soldiers are coming up, and that is your Rajputs. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? ओके सर, आप बोल रहे थे राजपूत से पहले सारे पेजेंट्स थे, बट बिफोर राजपूत से पहले भी तो बैटल्स हो रही थी, तो फिर ये लोग क्या थे? ये लोग क्षत्रिय थे, देवर पेजेंट्स और व्हाट? उससे पहले बैटल्स हो रही थी तो कौन जीत रहा था बैटल्स को? यही लोग जीत रहे थे ना। गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूट्स, पालास, ये क्या कर रहे थे? ये अपने एम्पायर को सस्टेन कर रहे थे। कितने दिन इनकी एम्पायर चली? एक आपको डराने वाली बात बोलता हूं, लेकिन मुझे भी कभी कभी ये प्रोसेस सुनता हूं तो मुझे डर लगता है। कोई भी डायनेस्टी इंडिया में 3 जनरेशन से ज्यादा अच्छे से नहीं चलती है। दिस इज द कर्स दैट यू हैव। ठीक है, कोई भी डायनेस्टी आप ले लीजिए, 300 साल से ज्यादा ठीक से नहीं चलती है। ओके, कोई भी प्रोसेस इंडिया में 300 साल से ज्यादा ठीक से नहीं चलती है। एंड दैट इज नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपने देखा होगा तो। ओके, एक सीरीज ऑफ बुक्स होती है बाय एरिक हॉब्सबॉम, and he writes that there is an age of democracy, there is an age of monarchy, there is an age of revolution. These are some of the books that he has written. और उनका ये कहना है कि एज ऑफ डेमोक्रेसी भी जो है वो भी 300-400 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, और उसके बाद वापस कोई दूसरा एज आएगा। मे बी वी विल हैव सम अदर एज। सो जो आप डेमोक्रेसी फोर्सेस देख रहे हैं, you know, that is, you know, I'm pointing about the age of democracies. I'm pointing about how from 1700s, late 1700s, democracy सब जगह पे establish हो रही थी। 1776 democracy was being established in America, 1789 it was coming up in France, और उसके बाद आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब प्रॉस्पेरिटी हुई, कैपिटलिज्म आया, तो लगभग एक वर्ल्ड वॉर लग गया हमें। बाय 1914 हमको लग गया कि सारे मेजर मोनार्कीज को खत्म करने के लिए, मतलब मोनार्किकल पावर्स को खत्म करने के लिए हमें लग गया। अब डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी को आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। अगर मैं 1914 कोई भी बात करूं तो 1914 से लेके हम 2023 तक हैं, तो आई डोंट नो, ठीक है ना? तो वो वाली बात है, बट दैट इज अ लॉन्जर ड्यूरे पर्सपेक्टिव। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको, बिकॉज समबडी आस्क्ड कि सर मतलब इससे पहले वो क्या कर रहे थे, इससे पहले उनकी कौन सी अच्छी हालत थी? इसके पहले भी तो वो लड़के मर ही रहे थे, राइट? लड़के कोई स्टेबल एम्पायर तो प्रोवाइड कर नहीं रहे थे, राइट? स्टेबिलिटी तो थी नहीं इंडिया में, डिसइंटीग्रेटेड पॉलिटी थी। तो ये उसी का काम है जिसका पार्ट टाइम काम हो सकता है सोल्जरिंग करना, है ना? तो पार्ट टाइम काम है ये। जो भी चीज आप पार्ट टाइम करोगे उसमें आप नहीं हो सकते ठीक। सो दैट इज, वी नीडेड अ फुल टाइम सोल्जर्स। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग इट? No, communism is also gone, so I'm not rooting also for communism. ठीक है, so make a, I don't know how many of you know about Eric Hobsbawm, but Hobsbawm की theories पढ़िएगा, और एक फुकुयामा है, फ्रांसिस फुकुयामा, ही राइट्स अबाउट पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखिएगा। ठीक है, सो आई टॉक्ड अबाउट द राजपूत, अ प्रोसेस ऑफ अग्निकुल मिथ। अब दूसरा आता है, जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू get one more page, so in order to understand and make you understand, एक मिनट, just a second guys. Okay, so that the rise of Rajputs you understood through, one was the process of mythological or societal process। ठीक है, नाउ सेकेंड, अंडरस्टैंड पॉलिटिकल प्रोसेस। अब दूसरा सवाल जो आपको आना चाहिए कि क्या सर ये बात सही है कि अग्नि के कुंड से तो कोई
ग्रेट नंबर ऑफ पीपल नहीं आ जाएंगे, इतने सारे लोग नहीं आ जाएंगे, इतनी सारी वॉरियर क्लास जो है वो नहीं आ जाएगी। दिस इज अगेंस्ट आवर लॉजिकल थिंकिंग, है ना, कि अग्नि के कुंड से ही अगर लोग आते रहते तो हम भी अग्नि के कुंड से आज भी बहुत सारे सोल्जर्स को पैदा कर सकते थे। तो ये वॉरियर्स आए तो आए कहाँ से, है ना, फ्रॉम वेयर वर दीज वॉरियर्स कमिंग अप, राइट? सो दैट इज द बेसिक पॉलिटिकल और डेमोग्राफिकल क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क, कि ये डेमोग्राफिकल क्वेश्चन है कि यहाँ से आए तो आए कहाँ से। दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। यस प्लीज। यस। Okay, this is the next question of this process that you should ask, that कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं इतने सारे numbers of राजपूत soldiers या इतने सारे number of राजपूत dynasties, नए वाले सुनने में dynasties जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? अब उसका political reason simple है, you have to look at what you call as influx of people. इंडिया में influx of new people was coming up. कैसे? How? Can I say, for example, some of you said that sir, Huns were coming up, and Huns जो थे वो ही राजपूत बन रहे थे, okay? Some of you will say sir, the गुर्जर प्रतिहाराज हैं, जो गुर्जर्स हैं वही प्रतिहार, क्योंकि प्रतिहार एम्पायर के बाद में ही सारे राजपूत डायनेस्टीज आते हैं, so they are basically Rajputs who are coming up, ठीक है? And then many other theories also that no, they are Kshatriyas themselves. ये खुद ही क्षत्रिय हैं, but they are a result of क्षत्रिय marrying below their word. तो क्षत्रिय अगर वैश्य से या क्षत्रिय अगर शूद्र से अगर मैरी कर रहे हैं और उनके जो बच्चे आ रहे हैं, they are the Rajputs because they cannot be given the term of Rajputs, but sorry क्षत्रिय, but they can be given a new term, ठीक है? अब ये सारी थियरीज हैं और इन सब थियरीज के ऊपर अभी भी रिसर्चेस हैं, सो यू कैन नॉट से इट अथॉरिटेटिवली। फॉर एग्जांपल, हून्स विच वर कॉल्ड एज हेपलथाइड्स या किद्राइड्स, जिनको ये इनको बोला जाता था किद्राइड्स डायनेस्टीज, इनके कुछ जो लीडर्स थे जैसे तोरामन हुआ, ठीक है, या मिहिर कुल हुए। नाउ मिहिर कुल वॉज अ प्रैक्टिसिंग शेवाइट, इन्होंने अपने आप को शेवाइट बोल दिया था, ठीक है? बट आप देखते हैं कि हून्स को और तोरामन्स को गुप्ताज आर नॉट एबल टू सबड्यू, गुप्ताज इनको हटाने में काबिज नहीं होते हैं, लेकिन हून्स को हटाने में गुर्जर प्रतिहाराज काबिज हो जाते हैं, गुर्जर प्रतिहाराज सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गुप्ता डायनेस्टी को खत्म करने वाले जो हून्स थे, उन्होंने अपना साम्राज्य इंडिया में इसके बाद क्यों नहीं लाया? आफ्टर गुप्ताज, व्हाई डू यू स्टडी गुर्जर प्रतिहाराज एंड नॉट हून्स? हैव यू थॉट अबाउट इट? आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि हेपलथाइड्स या हून्स जो थे, जिन्होंने गुप्ताज के लास्ट रूलर्स के साथ फाइट की, स्कंद गुप्ता या कुमार गुप्ता, या उसके बाद में जो लेटर गुप्ताज थे जैसे भानु गुप्ता, बुद्ध गुप्ता, वैन्य गुप्ता एक्सेट्रा, ये सारे गुप्ता से जो उन्होंने फाइट की, तो इंडीड दे एंडेड द गुप्ता एम्पायर। लेकिन इसके बाद में आप हून एम्पायर क्यों नहीं पढ़ते हैं? डू यू स्टडी हून एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री? You don't study, right? So next, coming about Gurjar Pratiharas. So what about Gurjar Pratiharas? We have seen that the Pratihars used to work under the Harshan kingdoms. Pratihars जो थे, क्या वो हर्षा के अंदर काम करने वाले फ्यूडेटरीज थे? Yes. Were they feudatories of हर्षास? प्रतिहार हम लोगों ने देखा है, द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रतिहार इज डोर कीपर, है ना? सो डोर कीपर्स जो हैं वो, and गुजर इज नथिंग बट अ ट्राइबल वर्ड बेसिकली. So doorkeepers who were feudatories of the Harshan time period, they were particularly coming up, or they were, particularly becoming the new ruling elite. बट इनके भी रूलिंग एलीट बनने का कारण ये था कि ये अपने आप को कभी क्षत्रिय नहीं बोल रहे थे. दे वर नॉट कॉलिंग देमसेल्व्स एज क्षत्रियस. डिड यू फाइंड एनी गुर्जर प्रतिहारा रूलर लाइक नागाभट्टा, ठीक है, या मिहिर भोजा, ठीक है, आप इनको क्या अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय बोलते हुए देख रहे थे? They were calling themselves as pratihars. They were calling as themselves as their own people. Okay, sometimes they were
Most of the time they were proselytizing, and most of the time they were they're taking the help of brahmanas to legitimize their position. वो अश्वमेध यज्ञ कर ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अपने आप को क्षत्रिय बोलना वो पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज their tribal identity is being highlighted at that point of time. They're proud of that. Okay, basically that. And then there is this group of kshatriya who are original kshatriya, जो पहले से क्षत्रिय हैं, but they don't find favor. अब ये favor, because political favor इनके पास नहीं है. Who is having political favor? Even in India, अगर गुप्ता जैसी डायनेस्टी आके रूल कर रही है, मतलब वैश्याज आर कमिंग एंड रूलिंग. दैट मीन्स व्हाट? अगर वैश्य भी आके रूल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गुप्ताज के साथ जो रूल कर रहे थे वो थे वकाटकास, एंड वकाटकास यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज ब्राह्मण्स. तो क्षत्रिय थे कहां पर बेसिकली इस टाइम पीरियड पर? कैन यू अंडरस्टैंड कि क्षत्रियों का पावर कितना कम हो गया था? क्षत्रियास थे नहीं. क्षत्रियास वर नॉट देयर एट द रूलिंग एलीट एट द हेल्म. ओके, so that created a problem for themselves, and that's why they needed a new group of people. हो सकता है इनके वर्ण में numbers of people were dwindling. For example, आज पारसियों के साथ क्या हो रहा है? Have you seen? The Parsis are few lakhs in India, and their numbers are dwindling, and you can find many good reasons for that. आप बहुत सारे उसका reasons ढूंढ सकते हैं. One very strong reason is that very strict religious endogamy, कि जो भी होगा रिलीजन के अंदर होगा. रिलीजियस एक्सटर्मिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है. So the Kshatriyas were also having some kind of problems, and then you had the Varna Samkars. So जो ideal theory है कि actually the Rajputs were coming up because of many other processes which were going parallel. So प्रतिहार्स आ रहे हैं, मतलब अब इन सबको जोड़कर अगर आप देखना चाहेंगे, सो बेसिकली आपको जोड़कर ही देखना है. मतलब आई वुड जस्ट अ सेकेंड लाइक टू यूज सम अदर इंक. सो मतलब अब अगर आप इस प्रोसेस को देखें, जोड़कर देखें, तो अंडरस्टैंड दैट the origin of Rajputs is not just related to one particular group of people. So maybe Huns came, and maybe they left some people who tried to intermingle within the society. So maybe they left some group of people जो सोल्जर्स के ही थे, बट दे वर नॉट हैविंग क्षत्रिय स्टेटस, राइट? तो उनको क्या स्टेटस दिया जाए? एंड देन देयर वर गुजर प्रतिहार्स who came, who were tribal in origin, but at the same point of time they were becoming kings, and hence they had some people who had to give in some status. And then Kshatriya themselves, which started marrying, anulom, where Kshatriya men or women were marrying the non-Kshatriya men and women, and they came across a group of people that, or there came a group of people that wanted a new section, or they wanted a new class to be identified within the Chaturvarna. So Brahmin, Kshatriya, वैश्य और शूद्र वाला जो चातुर्वर्ण था, एज इट इज दिस वाज नॉट फॉलोड इन इंडिया, बिकॉज हमने बहुत सारे कास्ट इससे पहले ही देखे. शूद्र के अलावा चांडाल्स आ गए थे, ब्राह्मण्स के अलावा और भी दूसरे टाइप ऑफ ब्राह्मण्स आ गए थे, शेवाइट्स आ गए थे, कायस्थ आ गए थे. सो बेसिकली राजपूत्स का आना एक कोई अलग विडंबना नहीं है. दिस वाज बेसिकली अ प्रोसेस which was followed by all the three parallel things which was happening. Basically जो नए लोग आ रहे थे because of intermingling of new groups of people, और influx जो मैंने आपको बताया था, influx हो रहा है new group of people का, नए लोगों का, ये एक नए सेक्शन को जन्म दे रहा है, एक नए ग्रुप को जन्म दे रहा है. और बेसिकली अग्निकुल मिथ जो है उसी चीज को लेजिटिमाइज कर रहा है. तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस पहले हो चुकी है. उसी पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर कोई नाम दे रहा है तो अग्निकुल मिथ नाम दे रहा है. एंड देन यू हैव द कमिंग अप ऑफ राजपूत डायनेस्टीज, जो गुजर प्रतिहारास के अंदर ही काम किया करते थे, और अब उनके फ्यूडेटरीज ना बन के वो राजा बनने की कगार पर बैठ गए. ओके, सो यू हैव चंडेलाज, यू हैव घड़ावलाज. ठीक है, ये नाम आप देख सकते हैं. यू हैव चौहानाज और चाहमनाज. ठीक है, यू हैव तोमर्स, सोलंकीज. ठीक है, सो ये सारे नाम
They are all coming new areas. They once upon a time used to work under them, and now they are becoming the kings. Now they are becoming the mighty Rajputs, and they need that backing. उनको वो backing चाहिए. Are you getting it? Yes, please. Everybody. ठीक है? So that is why I said that these processes are not, uh, as I told you, blanket statements. These are not वेरी मच सिंपल ब्लैंकेट स्टेटमेंट. ये सारे प्रोसेसेस हैं जिनको दो तीन तरीके से समझना जरूरी होता है. तो एक आप लिटरेचर के फॉर्म से समझते हैं, दूसरा सोसाइटी के फॉर्म से समझते हैं, तीसरा पॉलिटिकल फॉर्म से समझते हैं. यस, दैट हैज बीन रिटन. देखिए, बुक में सिंपली लिखा होगा ऑब्वियसली, बट आई एम श्योर कि जब एक्सप्लेनेशन दी जाती है, देन इट ड्राइव्स द पॉइंट होम रादर देन एक्सेप्टिंग व्हाट इज रिटन हियर. ठीक है. आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड गाइस? बेसिकली हम लोगों ने 1 घंटा लगाया इसके ऊपर. सो कहने का मतलब है कि कहानी का प्रोसेस समझ में आना चाहिए. एक राजा था, एक राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ से नए राजपूत पैदा हो गए. वो एक कहानी है, लेकिन उसके कहानी के पीछे की कहानी जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है. दैट प्रोसेस should be able to understand. Are you clear, everybody? Anybody any doubt? You can please ask. Anybody any doubt? Anybody any doubt? Yes, please. All clear? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं? Sir, at that time Rajputs were only new coming warrior class. No, just not just Rajputs, there were other warrior classes also. But we study Rajput as a proliferation. We study Rajputs just as a proliferation. बाद में आप देखेंगे that there will be the coming up of new group of people. For example, Vokalingas आते हैं, ठीक है, बसावनास के ग्रुप के लोग आ रहे हैं, ठीक है. You have some tribal ethnic cult etc. That was coming up in South India, ठीक है. जगन्नाथ कल्ट आप देखते हैं उड़ीसा में, इसी टाइम पर आएंगे. मतलब इसी टाइम का मतलब है कि 11th-12th सेंचुरी में आएंगे, basically that is the idea. So basically Rajputs were the need of the hour for Guptas, not Guptas but even for the later Indian dynasties. आपको सोल्जर्स चाहिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए. सर, आई हैव आस्क्ड यू अबाउट गुर्जर कम्युनिटी, कैन यू प्लीज आंसर दैट? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन मल्लिका? वो ऊपर चला गया होगा. व्हाट हैव यू आस्क्ड अबाउट द गुर्जर कम्युनिटी? कैन यू प्लीज? सर, चंबल का टेम्पल कॉम्प्लेक्स गुर्जर प्रतिहार के टाइम का है. गुर्जर प्रतिहार के टाइम का एक कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं तेली का मंदिर है, ठीक है. दैट्स द ओनली थिंग. अदर देन दैट इट इज नॉन कोलैबोरेटेड. कोई कोलैबोरेशन नहीं है उसका. Sir, now Rajput term is used to mention Kshatriyas. See, that is what I tried to tell you. That those who consider themselves from the ruling class, Kshatriyas, they don't call themselves as Rajputs. I don't know why. Okay, so go and ask them. Not like, Rajputs call themselves as Kshatriya. But there are some Kshatriya groups in India, particularly the ruling families, who call themselves as Kshatriya only. So that is the thing. Sir, Gujars in Punjab, Himachal, and Jammu Kashmir are Muslim. Why so? Malika, it's very easy to understand. Why the tribals of Central Asian regions were becoming Islamist. At once upon a time, they were Buddhist, right? So वो इस्लामिस्ट क्यों बन रहे हैं? वो इस्लाम को फॉलो क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था कारामाती बुद्धिस्ट के बारे में, those who used to follow Vajrayana Buddhism, and then they became practitioners of Islam. Why? Because tribals are
prone to take religion? Simple. Why the northeast of India, which was a tribal stronghold, mostly today following Christianity? Answer is British rule, right? They were proselytized into Christianity, right? So, as a simple reason that why tribals take a particular religion, it's like बिरसा मुंडा की पूरी कहानी यही है कि बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और पहले वैष्णविज्म में गए, फिर वो उन्होंने वैष्णविज्म को भी त्याग दिया और फिर अपनी बिरसायत रिलीजन फाइंड की। उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल्स को हमेशा बाहर से आने वाले रिलीजन्स जो हैं अपने फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ना मैं क्रिश्चियनिटी में जाऊंगा, ना मैं हिंदुइज्म में जाऊंगा, मैं अपना रिलीजन, अपना धर्म खुद खोल रहा हूँ। तो आज भी झारखंड में उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है ना? सो बिरसा हैपेंड टू बी वन once a person, like one tribal, I think, who tried to open his own religion, but once upon a time, yes, once upon a time he was converted to Christianity. Particularly the German missionaries were working in the area of Birsa, and the way he converted to Vaishnavism, and then he converted to he started with his own religion. This is very dramatic. There is a very dramatic thing, and you know what, Christmas is coming, and 1899 is the time period when Birsa starts his insurrection on the day of Christmas. So he starts his insurrection calling, yes, he starts his insurrection calling Queen Elizabeth as Queen Mandodari, and takes the day of Christmas as the day of rebellion against the Britishers. So he was one very conscious person, a very conscious person, a very well informed person, and he knew what he was doing. Other than what Britishers used to say, that tribals have what you call as a barbaric culture. They are not having political consciousness, and they are not having political theory or culture, etc., etc., etc. They were very much scared of Birsa. So Birsa ki kahani is one such once in a time story. ठीक है. Sir, you often talk about Chatur Varna. So is there any other type of Varna? No, only 4 type of Varnas were there. Sir, why Harsha didn't try to suppress them when they were emerging at that time? Who? हर्षा ने किसको सप्रेस नहीं किया? अच्छा, हून्स को. हून्स हर्षा के टाइम पे नहीं आते हैं. हून्स कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम से आना शुरू होते हैं. दे आर द लेटर गुप्ता रूलर्स. और फिर भी स्कंदगुप्ता इज स्टिल एबल टू रिमूव देम, बट देयर इज एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एज भिटारी इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्तास, एंड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ मंदसौर इंस्क्रिप्शन. सो भिटारी और मंदसौर इंस्क्रिप्शन दोनों ये बताते हैं कि लेटर गुप्ता रूलर्स तोरामन को, मिहिर कुल को हरा नहीं पा रहे थे. सो दे वर basically not able to repel the Huns. So Huns came, they disrupted the Guptas, and then they were also removed by the later coming upon of Harshas or the Pushyabhuti kingdoms, etc. So wo basically they were not coming up at that point of time. सर, वाई बिरसा इज यूजिंग मंदोदरी? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया थी वहां पर लंदन में, तो वो अपने लोगों को बताना चाहते थे कि रावण का राज्य जो है वो लंदन में है. लंदन में एक शहर हुआ करता था लैंकाशायर. लैंकाशायर वाज वेरी मच फेमस फॉर कॉटन एक्सपोर्ट्स. तो वो लैंकाशायर को, विच वाज LANCASHIRE, लैंकाशायर को बोलते थे लंका शहर. दिस वाज अ वेरी गुड थिंग दैट ही डिड. बट वो बोलते थे कि लंका शहर में क्वीन मंदोदरी रहती है. बिकॉज हाउ डू यू टीच ट्राइबल्स कि ये क्वीन विक्टोरिया है, वो चार्टर एक्ट देके ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रख रही है? आपको समझाने में 4-5 लेक्चर लगते हैं. तो यस, तो वहां पर बेचारे ट्राइबल्स को समझाने के लिए कैसा लगेगा. सो दैट वाज हिज वे ऑफ टेलिंग पीपल दैट देखो भाई, इंडिया में तो कोई क्वीन थी नहीं, है ना? तो इंडिया में किसी रानी का ट्रेडिशन आप राजा के साथ ही इमेजिन कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी रानी हो जो अकेले रानी हो, उसको इमेजिन कर लेंगे नहीं, आपको मंदोदरी चाहिए. सो यस, दैट इज आउट देयर.
ओके, क्लियर? और कुछ? सर, कैन वी से द राइज ऑफ राजपूत वाज द रिवाइवल ऑफ क्षत्रिय एज अ front cover in society? You can say that they were revivaling themselves, but frankly speaking, एक किताब है रुस्तम बैनर्जी, रुस्तम भरूचा की, राजस्थान की हिस्ट्री पर. अगर आपको क्षत्रिय राजपूत शिज्म के बारे में पढ़ना है, so please understand that those who are from Rajasthan, they understand it very clearly that राजपूत और क्षत्रियों के बीच में काफी मनमुटाव होता है, काफी डिफरेंस होता है. वो कास्ट बायसनेस आज भी रखते हैं, आज भी. तो हमें ये लगता है कि राजपूत एंड क्षत्रियज आर वन एंड द सेम. Rajputs did call themselves as Kshatriya and they want to call themselves as Kshatriya, but Kshatriya अपने आप को क्षत्रिय ही कहते हैं, वो राजपूत नहीं समझते. मतलब वो बेसिकली राजपूत को अपने से थोड़ा सा नीचे के कास्ट के मानते हैं. जैसे कि आपको ब्राह्मण्स में भी नंबर ऑफ कास्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज सरयुपारी ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, पता नहीं मिथिला ब्राह्मण, द ब्राह्मण्स फ्रॉम कोंकणस्थ ब्राह्मण्स, ठीक है. There are some Brahmins in Kerala and Maharashtra who say that they are true Brahmins because they have come from the dynasty of Parshuram. तो मतलब वहां पर भी चित्पावन ब्राह्मण्स, तो मतलब वहां पर भी आप इंडिया में वर्ण में भी देखेंगे कि कास्टिज्म है. वो सब छोड़ दो. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी नाम शूद्रास के लिए. नाउ नाम शूद्रास आर द लोएस्ट क्लास ऑफ शूद्रास इन बंगाल. और बंगाल में आप ये देखेंगे कि दलित उन नाम शूद्रास के, आप कहते हैं कि अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी है, बट दलित खुद नाम शूद्रास को नहीं छूना चाहते बिकॉज दे से दैट दे आर the lowest among our varna and we don't have matrimonial relationships with them, we don't touch them, we don't eat what they touch. So that is also there. Forget about, Islam also is practicing out there. Islam mein I was shocked to see there was a particular, I would not like to take the name, but there was a particular friend of mine who was a Hindu, who was a Indian Muslim, and his mother went for Hajj in Saudi, and unfortunately she died there. And you know what? The Saudis have a separate graveyards for people who are born Saudi Muslims. So those who are Middle Eastern Muslims, उनके लिए अलग ग्रेवयार्ड है और इंडियन मुस्लिम्स के लिए अलग ग्रेवयार्ड है. क्यों? Why is that so? So they don't even consider Indian Muslims as equal to them, whereas they follow the same Islam, whereas they follow the same Hanafi school, whereas they say follow the same Sunni school. But no, even if you are Sunni, even if you are following the same Sharia, if you are following the same Hanafi, still आपको अलग दफनाया जाएगा, उनको अलग दफनाया जाएगा. तो ये जो क्लासिफिकेशन का जो दौर है, ठीक है ना, वो चलता रहता है और चलता रहेगा. जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ह्यूमन सोसाइटी बेसिकली बाय नेचर इज अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी. आप किसी न किसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन तो जरूर करेंगे, और किसी न किसी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से चलते आया है, चाहे वो क्लास में हो या कास्ट में हो. ठीक है, आई होप वी शुड एंड दिस थिंग हियर. हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन किए. I think we should go a bit ahead. I should name the Rajput kings, kingdoms, etc. ठीक है. ठीक है. Yes, everybody आगे बढ़े. Sir, most of the Mundas are now Christians. Yes. सर रुकिए तो सर, आप लोग को डिस्कशन में अब ज्यादा मजा आ रहा है क्या? डिस्कशन करते रह जाओगे तो फिर सिलेबस नहीं होगा. इसीलिए बहुत सारे टीचर्स सिंपल बोल देते हैं कि अरे भाई छोड़ो, राजपूत जो है खून से आ गए थे. है ना? सिंपल सिंपल रहने दीजिए. चीज ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या फायदा, है ना? बट आप डिटेल में यूपीएससी में नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिंस योर लॉन्ग टर्म बैच, सो आई एम एंगेजिंग इन डिबेट्स एंड डिटेल्स. अदरवाइज एसआईपी बैच के होते तो नाम लिख के आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए. अब
भूमिहार्स का भी कंसेप्ट प्रोलिफरेशन से ही आता है, लैंड होल्डर क्लास आर भूमिहार, सो दैट इज आउट देयर, ठीक है। सर आई एम आस्किंग, क्षत्रियस वर दे फॉर battles? Kshatriyas are for rulers. They are ruling out there. Okay? They are the ruling dynasty. So they are basically people who govern. They are the Kshatriyas. Okay? Sir, why did kings didn't snatch back the land grants from feudal lords? आपको लगता है कि किंग की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हजारों फ्यूडल लॉर्ड से उनके लैंड स्नैच कर लें? कल के कल विद्रोह हो जाएगा, है ना? आप पेंशन हटाते हो तो आपके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन हो जाता है। तो आप पेंशन की जगह पे अगर लैंड देने लगे और लैंड हटा दोगे तो क्या विद्रोह नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप अपनी राज्य व्यवस्था कैसे करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड। सर, क्षत्रिय वर्ड फर्स्ट केम देन राजपूत, इन राजपूत फैमिली स्ट्रिक्टली फॉलो कास्ट सिस्टम? यस, kshatriya word first, kshatriyas first come first, of course we have seen it in the word kshatriya comes from vedas themselves, right? बट बाद में राजपुत्र वर्ड जो है वो आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द राजपूत स्टेट्स आउट देयर। अब आपको क्वेश्चन जो है इनमें से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि चौहानास कहाँ पर थे, व्हाट वर देयर रीजन, और कभी कभार किंग्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वर द रीजन्स एंड देयर किंग्स, बस यही देखिए। सो दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहार्स। रीजन इनका जो था वो शाकंभरी या सांभार रीजन का जो था एरिया, ठीक है। बाद में चौहानाज और चाहमनाज अजमेर और फिर दिल्ली भी जाते हैं। सो दिल्ली में भी इनकी चढ़ाई होती है अगेंस्ट तोमर्स। ये समझ, ये आप लोग गांठ मार के रखिएगा इस बात को, दैट राजपूत डायनेस्टीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये था दैट दे हैड इंटरसिनाइन बैटल्स, एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, ठीक है। दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर। ये एक और रीजन बताता है हिस्टोरियंस की तरफ से दैट बेसिकली दे वर इनटू अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल कल्चर। ये ट्राइबल कल्चर फॉलो कर रहे थे और उन्हें फिर चातुर्वर्ण में लाने की कोशिश की जा रही थी। सो बेसिकली यू नो ये एक ट्राइबल ट्रेट होता है एक दूसरे से फाइट करने का। आपको याद होगा कि वैदिक एज हम कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि वैदिक क्लैंस जो हैं, यदु, पृहु, द्रव्यु एक्सेट्रा, ये लोग एक दूसरे से फाइट करते थे। तो हमने क्या कहा था, दे आर ऑल्सो ट्राइबल इन नेचर। सो राजपूत ऑल्सो दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो चौहानास जो है वो तोमर्स के साथ काफी फाइट करते थे, ठीक है। तो तोमर्स ने दिल्ली का कब्जा किया था, दिल्ली को फिर बाद में चौहानाज या चाहमनाज ने कैप्चर कर लिया। इनके इंपॉर्टेंट किंग्स थे अजय राज, विग्रह राज, पृथ्वीराज, ठीक है ना। तो यू नो पृथ्वीराज चौहान बिकॉज he fought with Muhammad Ghori the two battles, and the second battle he lost, and that started with Delhi Sultanate, है ना। So everybody knows पृथ्वीराज चौहान, बट चौहानास जो थे वो तोमर से काफी फाइट किया करते थे और इनकी असली जगह दिल्ली नहीं हुआ करती थी, इनकी असली जगह अजमेर या शाकंबरी। अजमेर द वर्ड आया है अजय मेरू से, ठीक है, अजय मेरू फ्रॉम अजय राज, ठीक है। तो ये अजय राज आप देख रहे हैं, तो अजय राज ने फाइंड किया था द सिटी ऑफ अजय मेरू, ठीक है। मेरू का मतलब होता है पहाड़, तो अजय का पहाड़ वो एरिया है अजय मेरू का। वहां से अब आ गया है अजमेर। ओके, सो अजय राज, विग्रह राज, शाकंबरी एरिया हुआ करता था। शाकंबरी इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ वन ऑफ द अवतार्स ऑफ शक्ति, ठीक है। तो शाकंबरी देवी के नाम से शाकंबरी का एरिया हुआ करता था, अब वो शांभार एरिया माना जाता है, ठीक है। Then you had बुंदेलखंड में चंडेलाज who were the famous makers of खजुराहो temples, ठीक है। तो जय शक्ति, यशोवर्मन, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे और इनका कैपिटल खजुराहो ही हुआ करता था। चंडेलाज में आपको याद होगा कौन सा टेम्पल हम लोगों ने किया था आर्ट एंड कल्चर में, कैन एनीबडी से? अच्छा, पीपीटी अवेलेबल ही नहीं है, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। Here. I'm so sorry. I was writing in PPT and I thought that it is there with all of you guys. So this is Chauhanas, as you can see. Okay. So the regions is um,
the rulers are Ajay Raj, Vigrah Raj, and Prithvi Raj. ठीक है, so Prithvi Raj particularly the third, and he is the famous of all because he fought Mohammad Ghori. दो battles होते हैं, first battle में वो जीत जाते हैं, second battle में हार जाते हैं. Okay. And the starting of Delhi Sultanate is out there. So he is basically fighting the Tomars. दिल्ली में इससे पहले तोमर्स रहा करते थे. चौहान्स ओरिजिनली दिल्ली के नहीं है, ओरिजिनली नॉट फ्रॉम दिल्ली. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दैट. That is the thing. And later on they come towards originally they are from Ajmer, which was founded as Ajay Meru, as you can see it out here. Then Chandelas of Bundelkhand. Yes, so I was asking you which temple did they make. हम लोगों ने खजुराहो टेम्पल में एक किया था example. Can you please tell me, anybody, example of Nagar style of temple? Anybody? कौन सा टेम्पल किया था हम लोगों ने नगर स्टाइल में, बताइए फटाफट. The name of the temple. We have done the name of the temple. Yes, please. हाँ हाँ, लक्ष्मण टेम्पल उसमें लिखा हुआ है, पीपीटी में लिखा हुआ है, इसलिए सब लोग आप लक्ष्मण टेम्पल बोल रहे हो. एक और टेम्पल हम लोगों ने किया था खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, which we say that it is the classical example of the Nagar style of architecture. Not Vishwanath. इसीलिए रिवीजन. कंडरिया महादेव टेम्पल याद है? कंडरिया महादेव टेम्पल मैंने करवाया था आपको कितने सारे गोपुरम बोल रहा हूँ, मंडप, स्मॉल मंडप्स, और फिर उसके बाद में एक बड़ा मंडप है ना, यहाँ पर अंतराल. ठीक है, अर्ध मंडप, मंडप के बीच में अंतराल, याद है? यस प्लीज. 64 योगिनी टेम्पल इज नॉट खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, समर्थ. ठीक है, कंडरिया महादेव याद है सर? एवरीबडी. कंडरिया महादेव टेम्पल इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इस साल नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूपीएससी का ज्यादा मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, बिकॉज राम मंदिर इज कंस्ट्रक्टेड इन नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल. अब राम मंदिर तो नहीं पूछेंगे आपसे, तो वो आपसे कंडरिया महादेव पूछेंगे. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, पार्वती टेम्पल, शिव टेम्पल, ये गुप्ता टेम्पल्स थे. सो पार्वती टेम्पल भूमरा, शिव टेम्पल नचना कुठार, सॉरी पार्वती टेम्पल नचना कुठार, शिव टेम्पल एट भूमरा. दीज आर गुप्ता टाइप टेम्पल्स. ठीक है, ये चंडेलास के टेम्पल्स हैं, आपके राजपूत के टेम्पल्स हैं, विच इज मेड बिटवीन 9th and 10th century AD, and they are making classical Nagar style of temples, the highest Nagar style of temples. So सबसे अच्छे नगर स्टाइल टेम्पल्स जो हैं इनके टाइम पीरियड में बनेंगे. नगर स्टाइल की शुरुआत होती है गुप्ता से, लेकिन ये सबसे अच्छा टेम्पल बनाएंगे. ठीक है ना? यस प्लीज एवरीबडी. भूल गए आप लोग जिन्होंने एंशियंट आर्ट एंड कल्चर किया हुआ है? यस, यू नीड टू रिवाइज एवरीबडी, नीड टू रिवाइज. ठीक है, ओके. द अदर इम्पॉर्टेंट चंडेला रूलर्स, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विद्याधारा एक्सेट्रा, बस उन्होंने बस क्वेश्चन नाम दे दिया था. ठीक है, तो किंग्स के नाम्स आते हैं, बस यही है. तो विद्याधारा वाज अ इम्पॉर्टेंट Chandela ruler. Why? Because he had to pay tribute to Mahmud of Ghazni, and then he later built Kandariya Mahadev temple. Okay, so that is why Vidyadhara was important. Then you have Parmaras of Malwa, the direct descendants of Pratiharas, जिसको कहा जाता है कि प्रतिहार के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं ये. सो परमारा का मतलब होता है फोज को मारने वाला ना, किलर ऑफ फोज, मतलब दुश्मनों को मारने वाला परमाराज. नाम ही आप देख सकते हैं कि नाम ही ऐसा है. ठीक है, ये मालवा रीजन में रहा करते थे. ओके,
and the present day of Madhya Pradesh, Mandu, etc. So important rulers were like Sindhu Raj, okay, or Bhoja, ठीक है. Don't confuse it with मिहिर भोजा, the गुर्जर प्रतिहार रूल. इनके भी एक रूलर का नाम भोजा हुआ करता था, ठीक है. लक्ष्मण देव, etc. ठीक है. So you know they were out there. So these are the names of the kings and they were in Malwa region. बस आपको नाम और ये पता होना चाहिए कि कौन से रीजन से. फॉर एग्जाम्पल भोजा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने आनंद पाल को मदद की थी. ये हिंदू शाही किंगडम्स के थे, सिंध के एरिया में रहा करते थे, काबुल सिंध के एरिया में. और इन्होंने जब गजनवीड्स के साथ लड़ाई की तो भोज ने हेल्प किया, ठीक है. ही ऑल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ भोजपुर, ठीक है, द प्रेजेंट डे, एंड वहां पे भुजेश्वर टेम्पल भी बनाया. Then you had Chalukyans of Solankis, very important because इन्हीं के एरिया में आपका सोमनाथ है, ठीक है. तो सोमनाथ टेम्पल इज आउट देयर. और आप जानते हैं कि महमूद ऑफ गजनी जो है वो कितने बार सोमनाथ के लिए आया था. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स मूल राज थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे भीमा. ओके, सो भीमा द सेकेंड. वाई? बिकॉज ये एक ऐसे सोलंकी रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद घोरी को रेजिस्ट किया था, इनफैक्ट हराया था, ठीक है. मोहम्मद घोरी को हराने वाले में से बहुत कम लोग थे. पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हराया था, लेकिन वो बाद में खुद हार गए थे. बट उसके बाद भीमा ने रिपेल किया था. सो चालुक्यंस, सोलंकीज ऑफ राज ऑफ the Gujarat region, they are very important for this particular thing. Okay. और आपके प्रेजेंट डे सोमनाथ मंदिर को भी जो है कुमारपाल सोलंकी ने बनवाया था. तो हियर इज योर कुमारपाल सोलंकी. और कुमारपाल चालुक्य एज जिनको कहा जाता है. so, कुमारपाल चालुक्य रीबिल्ड्स द सोमनाथ टेम्पल. हालांकि इनके टाइम पीरियड पर ही काफी अटैक्स हुए थे, बट ही रीबिल्ड्स सोमनाथ टेम्पल आउट देयर, ठीक है. एंड फाइनली यू हैव तोमर्स, माय पर्टिकुलर फेवरेट, बिकॉज बहुत सारे बाउलीज बनाए थे इन्होंने. दिल्ली में बहुत सारे बाउलीज बने हैं तोमर्स के, आज भी मिलते हैं हमें. तो आप कह सकते हैं कि 11th सेंचुरी का अगर कोई एडी का 1000 साल पुराना कोई चीज दिल्ली में मिलता है तो तोमर्स के बनाए हुए बाउलीज मिलते हैं, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये बताया जाता है कि दिल्ली में आज भी तोमर्स के डिसेंडेंट्स रहते हैं, ठीक है. तो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है. सर राय नायका देवी ने भी हराया था, बिल्कुल, ठीक है, वो भी उन्होंने भी हराया था, ठीक है. यस, घुरीद, यस. सो अनंतपाल तोमर के जो ये बताया जाता है कि डायनेस्टीज है आज भी दिल्ली में रहते हैं. तो जो पुराने एरियाज हैं, जैसे पालम का एरिया है दिल्ली में. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टे इन दिल्ली और यू नो द एरियाज ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली में आज भी वहां पर काफी राजपूत डायनेस्टीज जो हैं वो रहते हैं. बावली जो है अनंगताल बावलीज. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक अनंगपाल तोमर और तोमर डायनेस्टी की बावली को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस करार दिया है. बावली क्या होता है? बावली स्टेप वेल होता है, वेयर इट इज कंस्ट्रक्टेड पर्टिकुलरली इन डेजर्ट इकोसिस्टम. जहां पर भी डेजर्ट इकोसिस्टम होता है वहां पर स्टेप वेल ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. ये बताया जाता था कि एक जमाने में दिल्ली और राजस्थान में हजारों बावलीज हुआ करती थी. इवन जयसिंह फ्रॉम द कछवाहा डायनेस्टी ऑफ जयपुर, वो भी काफी बावलीज बनाया करते थे. और दिल्ली में बावलीज बनाने का ट्रेडिशन बहुत हुआ करता था. मुगल इंडिया तक शायद 65 या 66 बावलीज हुआ करती थी. और अब गिन गिन के दिल्ली में आपको बावली मिलेगी 3 या 4, जो कि खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हैं. तो एक निजामुद्दीन की बावली है, एक अग्रसेन की बावली है, एक अनंगपाल तोमर की बावली है, और एक मेहरौली में कुतुब मीनार के पास बावली है. मतलब 4-5 बावलीज आपको मिलते हैं. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA is doing some conservation work, but we have lost. So that was the earliest water harvesting tradition that we had, a very good tradition, ठीक है. बावलीज में आपको नीचे जाना पड़ता है,
स्टेप वेल में जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है काफी, 2-3 आप लेवल्स नीचे उतरते हैं और फिर बाद में आउट है। इनके एक तोमर किंग सूरज पाल के नाम से सूरज कुंड भी बना हुआ है हरियाणा में, आजकल सूरज कुंड मेला काफी फेमस है, तो दैट इज आउट देयर। खड़ावलास ऑफ कन्नौज, इनके साथ भी बेसिकली चौहान्स की काफी तनातनी रहती थी। घड़ावलास जो कन्नौज के थे, देवर स्लाइटली दे वर कॉल्ड एज द ट्रेटर्स, बिकॉज ये बताया जाता है कि जयचंद जो घड़ावलास के थे, उन्होंने इनवाइट किया था द घोरियन इन्वेजन्स को। सो बाद में इन ऑर्डर टू डिफीट द चौहानास, तो चौहान्स को डिफीट करने के लिए उन्होंने बाहर से लोगों को इनवाइट किया था। सो दिस शोज यू द जयचंद का नाम बहुत लोग जानते हैं, और जयचंद का नाम लिया जाता है एज अ पर्सन हु यू नो व्हाट, जो धोखा देते हैं, है ना, तो दैट इज द नेम विच इज एसोसिएटेड विथ हिम। बट अदर देन दैट दे वर आल्सो वेरी पावरफुल डायनेस्टी, बिकॉज ये कन्नौज को कैप्चर किया करते थे, ठीक है। सो कन्नौज वंस अपॉन अ टाइम वाज द बोन ऑफ कंटेंशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी आउट देयर, तो गढ़ावलास को आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबडी? यस प्लीज। सर बावली क्या है बोल तो दिया मैंने आपको, ठीक है। ओके ओके, क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज योर राजपूत डायनेस्टीज आउट देयर, ओके। एनीबडी, एनी डाउट? इनके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर बट not this year, but last to last, not this year's prelims paper, last year's prelims paper, 2022. You had questions on Rajput kings. You had questions on Rajput kings. Just their simple names. That's it. तो उनका सिंपल नाम वगैरह पूछा था और कुछ नहीं, ठीक है। So that is out there. Yes, guys, clear everybody? सर सूरज कुंड के बारे में बताइए। आई लिव नियर बाय। सूरजपाल तोमर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सूरज कुंड बनाया था, ओके, एंड यू नो दैट मेड a very if I would say a center of Tomar's activity. हालांकि center of Tomar's activity दिल्ली ही रही थी। कहानी ये है कि सूरजपाल तोमर को ये बताया गया कि जो मेहरौली आयरन पिलर है, किसी ब्राह्मण ने बताया था कि मेहरौली आयरन पिलर जो है वो शेष नाग के ऊपर बैठी हुई है, एंड आप उसे उखाड़ने की कोशिश मत करिए, और जब तक ये मेहरौली आयरन पिलर रहेगा तब तक आपका राज्य भी रहेगा। ये कुतुब मीनार के बनने से पहले की कहानी। तो सूरजपाल ने उसे थोड़ा उखाड़ा और थोड़ा हिलाया, और नीचे से खून आने लगा, और खून आने लगा तो उन्होंने वापस जितना भी उसे गाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से गड़ा नहीं, और उसके नीचे की जमीन जो है वो ये कहा जाता था कि ढीली रह गई, और वहीं से नाम जो है दिल्ली का ढीली ढीली पड़ गया, और वहीं से दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी कहानियां हैं, और फिर उन्होंने सूरज कुंड का वो क्षेत्र चुना टू फॉर हिज आउट देयर। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द यू नो किंवदंतीज, जिसको आप कहते हैं ओरल मेमोरीज की हिस्ट्रीज हैं। इस पे विश्वास, यानी कि इस पे पूरा शब्दशः विश्वास नहीं किया जाता है। somebody is asking सर अल्लाह रूदल क्या है? that's again a folk story which is coming up, ठीक है। जो folk story है, जो बताया जाता है about love and war poems between the Rajput dynasties, and similarly since you are asking about कि सर पृथ्वीराज मैरिड जयचंद डॉटर संगीयोगिता, और पृथ्वीराज और संगीयोगिता की भी कहानी काफी आती है। तो ये सारे फोक स्टोरीज हैं। अब जैसे पृथ्वीराज रासोई है जो चंद बरदाई ने लिखा है, और उसमें भी हम देखते हैं कि पृथ्वीराज राष्ट्र में मोहम्मद घोरी को ही मार देते हैं। तो सी दीज आर द स्टोरीज ऑफ वेलर। तो दो टाइप के स्टोरीज लिखे जाते थे, वेलर के और लव के। लव पोएम्स, वॉर पोएम्स, दीज आर दैट पोएम्स। एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स
इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिफ्ट थ्रू, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं, EH कार सेज दैट वी शुड रीड अगेंस्ट द ग्रेन। तो हमें अगेंस्ट द ग्रेन पढ़ना होता है। इन कहानियों के बीच में से कोई ना कोई तथ्य होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, एंड वी डोंट जस्ट डिपेंड अपॉन literary source, we also depend upon other sources, other non contemporary sources, and we depend upon archaeological sources also. So ये सारी चीजें हैं जो हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करती हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट इट। Sir, when do Gaikwads of Vadodara come at play in history? After they are basically Marathas, so Gaikwad come after the Peshwas as such. तो वो पेशवा के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, क्या जनरल्स हुआ करते थे। गायकवाड़ हो होलकर हो, सिंधिया हो, भोसले हो, ठीक है। सो दे आर ऑल दी। हम राजपूत का डिफीट एंड ओरिजिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे कल से, ठीक है। So the reasons of defeat of Rajputs and the coming up of Gorian kingdoms, that will start from tomorrow. Okay, तो हम वो देखेंगे। The reasons of defeat of Rajput. We don't have much evidence of their administration, because understand that they are very short-lived dynasties, and because they are very short-lived dynasties, we kind of, you know, um, not have much information about it. In fact, आप देखेंगे कि हमारे पास गुर्जर प्रतिहारस के एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। So that is the thing. So reasons of enmity between Chauhans, Tomars and other Rajputs, tribal orientation, or are you all able to see it?